My dear students, let us now start with our next lecture, lecture 19. In the last session, in the lecture number 18, we studied with the help of this PPT, and we studied the chapter of conveyance and regulating structures for canals. The issue basically in this board is this, that when I am writing something here and these lights are off, so what happens is, when I write something, this will obstruct your view. The second thing basically is, when I am writing outside this, because the projector light will come only. So because of that, what is going to happen is, this margin will be there, and beyond that margin if I'll go and if I'll draw something else, then you will not be able to see that. Then we have to switch off the light to make you see these things which are written outside the margin. So switching on, switching off, that was an issue. So that's why we do the presentation kind of that particular thing in that format. Okay. In the similar way, river engineering and the dams, spillways and energy dissipators, which contains a lot of diagrams, and you will have the material. So we'll do those chapters also in the same way. All right. Okay. So now we are going to see the questions of the last chapter, conveyance and regulating structures for canals. So let us see those questions. Question number 1. ठीक है, समझ गए? तो पहले वाले में मैंने हिंदी में बताया था कि ऐसा क्यों किया, अभी इंग्लिश में बता दिया ऐसा क्यों किए. ठीक है, अब देखो सिक्स्थ चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, if the channel index at an irrigation outlet is 5/3, setting of an orifice type outlet in order to have proportionality will be. So this is a part of theory, right, where we have seen that channel index is given 5/3 already, an orifice type outlet, and for an orifice type outlet, outlet index is equal to 0.5, and therefore for question number 1, setting is equal to m by n. M by n means outlet index by channel index. Outlet index 0.5, channel index 5/3, giving us 3/10 or 0.3. So that is our answer. So first answer C. Okay. Second one, the following data is available at the proposed site of a canal crossing. This is the data which is given. The most appropriate and economical cross drainage work at the above site will be. At the above site. So what we have to do is, we have to plot the RLs first of all. We have to mark it down. The best way I am telling you. The best way is, first of all, SBL. Drainage bed level means what? SBL. So this is SBL, and the value of SBL is 252.2 meter, SBL value. And canal bed level, that is CBL, is 248. So this is CBL, 248 meter. Okay. FSL and HFL. For the drain there will be HFL, and for the canal it will be FSL. So HFL of this is 253.2. So here, somewhere here, HFL of the river 253.2 meter, and full supply level of canal is 253 meter. 253 will lie somewhere here. So I am marking it an extended way, or maybe I can show on this side. Okay, so this will be very clear. So this is this was highest flood level. All right. HFL, and this is highest flood level. This is full supply level, FSL. What is the value of FSL? 253 meter. So these two lines, this one, bold ones, these two lines represent canal bed and canal full supply level. And these two lines, which are not bold ones, these represent the river HFL and river SBL. So you have the RLs, you can plot it, right? So see this, I am drawing a canal now. So for this canal, this is the highest flood level, and this is the canal bed level, CBL. And for the river I can plot, and for the river it is like this. So like this. For a river, this is highest flood level, and this is our bed level. So this is for river, and this is for canal. This is for canal, that is for river. So canal and river are looking like this. Yes. So river, there might be a small river passing through a big canal. A small river passing through a big canal.
Simple, not a problem, right? We know that there can be variations in the types of rivers. There may not be a big river, a small drain, a big canal. So that is the case here, not a big issue, right? We have seen that. So बात समझ में आई कि अभी तक क्या क्या बोल गए? ऐसा है कि देखो, ये है कैनाल का बेड लेवल, ये है कैनाल का फुल सप्लाई लेवल. मैंने आरएल को प्लॉट कर दिया जो दिया है, और ये एसबीएल है स्ट्रीम का बेड लेवल, और ये है एचएफएल मतलब रिवर का हाईएस्ट फ्लड लेवल. ऑब्वियसली कैनाल बड़ा है, रिवर छोटी है. एज पर द डेटा गिवन डिस्चार्जेस देख रहे हो, एक में 2 है, एक में 400 है. ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी रिवर पास कर रही है कैनाल के थ्रू. लेकिन ऑब्वियसली अब कैनाल को हमें नीचे से ही लेकर के जाना पड़ेगा टनल बनाकर. जब कैनाल को नीचे से लेकर के जाते हैं और कैनाल का साइफन बनेगा, कैनाल का साइफन बनेगा, समझ रहे हो कैसा हो रहा है? एक कैनाल है, ठीक है, इस तरीके से, और एक रिवर है ऊपर में ऐसा. तो अब यहाँ पे इसको डिप करना पड़ेगा कैनाल को हमें ऐसे डिप करके लेकर के जाना पड़ेगा. इसके बेस को पूरा नीचे इस तरीके से ऐसा करना पड़ेगा. तो एक स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे दैट विल रिप्रेजेंट अ साइफन, एन इन्वर्टेड साइफन. बट वी डोंट से इन्वर्टेड साइफन, हम इन्वर्टेड साइफन नहीं, हम सिर्फ साइफन बोलते हैं. टर्मिनोलॉजी में ऐसा है वैसे इन्वर्टेड साइफन. तो जब इस तरीके का कैनाल का साइफन बनता है तो क्या नाम देते हैं उसको? कैनाल का साइफन बनता है तो हम कहेंगे कैनाल साइफन और सिंपली अ साइफन. कैनाल साइफन और सिंपली अ साइफन. साइफन बोलिए, कैनाल साइफन बोलिए, बात एक ही है. अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच होता हुआ दिख रहा है. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड का डी, अ साइफन. तो सेकंड का आंसर विल बी डी. गॉट द पॉइंट? चलिए आते थर्ड वन इंपॉर्टेंट है. इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 2 आंसर आपको लगते हैं, बिकॉज इट सीम्स एज इफ दे आर 2 करेक्ट आंसर्स. But UPSC gave only 1 answer as correct, and I'll tell you the reason also why they gave 1 answer as correct. So understand the third question properly. देखो, the worst condition of uplift on the floor of a siphon aqueduct occurs when? The worst condition of uplift. We have seen the worst condition of uplift are 2 cases. 2 cases हैं worst condition of uplift की. The first case is when the drainage bed is dry. When the drainage bed is completely dry, water table is up to the drainage bed. Water table drainage bed तक आ चुका है. Water table drainage bed तक आ चुका है. Drainage bed completely dry and water table drainage bed तक आ चुका है. ठीक है? तो देखिए वर्स्ट कंडीशन कब होगा अब ये बताना है. पहला कंडीशन जो मैंने आपको बताया. सेकंड कंडीशन, the canal runs full, the drainage is dry and there is a huge amount of seepage and that is a 3-dimensional flow. That is not a 2D flow, that is a 3D flow. क्योंकि वहां से हर तरफ सीपेज होगा, मतलब 3D में इमेजिन करोगे तो वो पूरा 3D फिगर बनेगा, और इसी वजह से उसको 2D में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. तो मैंने आपको एक रियल पिक्चर से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है. पहला, अपलिफ्ट ऑन द फ्लोर ऑफ अ साइफन एक्विडक्ट. देखिए साइफन एक्विडक्ट क्या होता है, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं. साइफन एक्विडक्ट होता है जिसमें कैनाल ऊपर होता है, रिवर नीचे से साइफनिक एक्शन से फ्लो कर रहा होता है. ऐसा, ये ऐसा रिवर का फ्लो होता है इस तरीके से. तो ये हम लोग पूरा कंक्रीट का फ्लोर वगैरह बनाते हैं, पूरा पक्का फ्लोर. तो इस तरीके से रिवर का फ्लो करवाते हैं ऐसा नीचे से. तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइफन एक्विडक्ट. ये मैंने रफ स्ट्रक्चर बनाया है. वी नो, वी कैन सी द हैंडआउट्स एंड सी द एक्चुअल वन. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इस तरीके से ये दिखाई पड़ता है. चलो, तो अब वर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं. तो वर्स्ट कंडीशन में पहला ऑप्शन देखिए, हाई फ्लड फ्लो इन द ड्रेनेज विद कैनाल ड्राई. अगर ड्रेनेज में हाई फ्लड फ्लो हो गया, यहाँ पे हाईएस्ट वाटर लेवल जितना भी जा सकता है या फिर हाईएस्ट डिस्चार्ज जितना भी जा सकता है वो जा रहा है, तो क्या यहाँ से अपलिफ्ट सबसे ज्यादा लगेगा? नीचे से नहीं लगेगा. हमने कल क्वेश्चन भी किया था. विच क्वेश्चन डिड वी डू? वी सॉ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 117, question number 9, and we got to know that more will be the head of water over the surface, over the floor, the more compensation to the uplift it will give. जितना ज्यादा, ये हमने प्रूफ भी कर दिया, हमने क्वेश्चन के वजह से समझ भी लिया. तो पहला ऑप्शन तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता कि इसमें आप फुल रख के पानी आप बोलोगे कि अपलिफ्ट का इफेक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है. नहीं, फिर तो अपलिफ्ट का इफेक्ट कम होने लग जाएगा जैसे जैसे ड्रेन में पानी भरता जाएगा. तो ये अपलिफ्ट को रिड्यूस करने लग जाएगा. करेगा कि नहीं? अपलिफ्ट के इफेक्ट को कम कर देगा. तो पहला तो आंसर हो ही नहीं सकता. वापस आते हैं, दूसरा देखते हैं. फुल सप्लाई फ्लो इन द कैनाल विथ ड्रेनेज ड्राई.
फुल सप्लाई फ्लो मतलब इसमें फुल हो पानी और ड्रेनेज ड्राई हो, तब आप 3 डायमेंशन में कैनाल यहां से ऐसे जा रहा है तो 3 डायमेंशन में यहां से सीपेज होता हुआ, फिर ऐसे सीपेज, इस तरीके से ऐसे सीपेज होता हुआ, मतलब इस पॉइंट को, ये एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट से यहां जा रहा है, फिक्स पॉइंट से यहां जा रहा है, इस फिक्स पॉइंट से यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, तो ऐसे करके फुल सप्लाई फ्लो जो है, जो अब कैनाल का अगर है तो सीपेज डेफिनेटली हो सकता है। तो ये आंसर हमारा प्रोबेबल आंसर है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि थर्ड का आंसर बी तो हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है आंसर। उसके बाद देखिए आगे, हाई फ्लड फ्लो इन द ड्रेनेज विथ कैनाल रनिंग फुल, ड्रेनेज में भी हाई फ्लड फ्लो, कैनाल भी रनिंग फुल, तो कंपेरेटिव टू द प्रीवियस वन कैन दिस बी योर आंसर? नो, क्योंकि इसमें जो सीपेज के लिए हेड डिफरेंस बचेगा वो कम बचेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें आप फुल फ्लो करवा रहे हैं तो जो हेड डिफरेंस बिटवीन द कैनाल एंड दिस, इसका एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन का जो आप देखोगे डिफरेंस, वो हो जाएगा कम, तो सीपेज की इंटेंसिटी होगी कम। मोर ओवर जब इसमें पानी भर जाएगा, व्हेन देयर विल बी वाटर हियर, इट विल बी एबल टू कंपेंसेट द अपलिफ्ट, एंड अपलिफ्ट विल नॉट बी एबल टू डू दैट मच अमाउंट ऑफ लिफ्टिंग अप, द फिनोमेना ऑफ लिफ्टिंग अप, राइट। इसके बाद तीसरा तो नहीं हो सकता। चौथा, वाटर इज एट ड्रेनेज बेड एंड द कैनाल इज ड्राई, वाटर इज एट ड्रेनेज बेड मतलब वाटर टेबल यहां तक पहुंच चुका है, ड्रेनेज के बेड तक के वाटर टेबल पहुंच चुका है, मतलब यहां तक पानी आ गया है, एंड द कैनाल इज ऑल्सो ड्राई, ठीक है, तो वाटर इज अप टिल हियर एंड द कैनाल इज ड्राई, कैनाल भी खाली है, कैनाल भी खाली है और वाटर इज अप टू द ड्रेनेज बेड, तो ऐसे में अपलिफ्ट का मैक्सिमम इफेक्ट लगेगा कि नहीं? तो डेफिनेटली थर्ड का आंसर डी भी हो सकता है, थर्ड का आंसर डी भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब यूपीएससी जो आंसर देता है मैं वो छोड़ो, बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले ही बताओ कि बी और डी अगर आपके दोनों आंसर लग रहे हैं तो आप किसको मोस्ट अप्रोप्रिएट वन चुनेंगे? आप किसको मोस्ट अप्रोप्रिएट वन चुनेंगे टू मेक श्योर दैट या दिस विल ऑलवेज बी द आंसर but the other one sometimes may not be the answer? Understand the point that one of these will always be the answer, the other one may not always be the answer. may not, मैं कह रहा हूं मैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कौन सा वाला? ये जो डी है ऑप्शन, ये हमेशा आंसर होगा हमारा, हमेशा। अब वो कैनाल लाइंड हो, अनलाइंड हो, कैसा भी हो, टाइप 1 एक्विडक्ट हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, डी जो होगा वो हमेशा होगा हमारा आंसर, क्योंकि कैनाल भी खाली, यहां भी खाली, और वाटर टेबल आ गया यहां तक के, तो मैक्सिमम अपलिफ्ट हमेशा लग जाएगा। लेकिन बी आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कैनाल के बारे में नहीं बताया गया, सीपेज के बारे में बोला जरूर गया है, सीपेज के बारे में बोला नहीं गया, सिर्फ बताया गया कि कैनाल में पानी भरा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये कैनाल अगर लाइंड होता और अच्छा ड्यूरेबल मटेरियल की लाइनिंग हो जाती, तो क्या कैनाल से उतना सीपेज होगा? अगर मान लीजिए पूरा कैनाल लाइंड है तो क्या कैनाल से उतना सीपेज होगा? डेफिनेटली होगा, वी कैन नॉट प्रिवेंट द सीपेज, लेकिन 99% सीपेज कैन बी प्रिवेंटेड, just practically speaking just 0.5%, 1% of the original seepage happens। मतलब अगर मान लीजिए अनलाइन में 100 क्यूमेक के रेट से सीपेज हो रहा था, एग्जांपल है, तो लाइंड करने के बाद 0.5 या 1 क्यूमेक के रेट से ही सीपेज होगा, तो बहुत कम हो जाएगा। और इसी वजह से, क्योंकि ये लाइंड या अनलाइंड स्पेसिफाई नहीं किया है, कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में इट इज नॉट स्पेसिफाइंग, इट इज जस्ट टेलिंग फुल सप्लाई फ्लो इन द कैनाल विथ ड्रेनेज ड्राई। So whether the canal is lined one or an unlined one, it is not specifying, because there are various types of aqueducts, type 1, type 2, type 3. Similarly, there are various types of siphon aqueducts, type 1, type 2 and type 3. So understand the point very clearly. This can be the answer sometimes, this cannot be the answers depending upon whether there is a huge amount of seepage happening or not. But this will always be our answer. So whenever there is a confusion between the two things, think of it, which can always be the answer. ये बहुत बार होगा, एफएम में तो बहुत होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में तो बहुत होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, सॉइल मैकेनिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, बीयरिंग कैपेसिटी वाले चैप्टर में कितने क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो आप वहां पे ये देखेंगे कि कौन सा आंसर जो है हमेशा फिट बैठेगा, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी जिसमें, तो डी आंसर है जो हमेशा फिट बैठेगा, जिसमें कोई डिस्क्रिपेंसी कभी नहीं होगी। समझ पाए? तो ऐसे में देखिए आंसर हो जाएगा
डी, थर्ड का डी होगा, वाटर इज अ ड्रेनेज बेड एंड द कैनाल इज ड्राई, सो दैट इज आंसर, थर्ड का आंसर डी, डी नॉट बी। ठीक, इसके बाद फोर्थ पे आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन आउटलेट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, वी नो, बी आंसर है, आउटलेट डिस्चार्ज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द पेरेंट चैनल। क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी होता है डी क्यू बाय क्यू डिवाइड बाय डी कैपिटल क्यू बाय कैपिटल क्यू, ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी। सो विच वन ऑफ द ऑप्शंस इज टेलिंग यू दिस? बी ऑप्शन। सो आंसर हो गया बी फोर्थ का। फिफ्थ देखिए, एंड फिफ्थ यू कैन इजीली आंसर, फिफ्थ वन you can easily answer. For the head regulator, the most severe condition of uplift pressure on the floor occurs when? head regulator क्या होता है? मैंने दो चीजें बताई आपको, क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर होता है जिसमें हम लोग पेरेंट कैनाल में पानी की डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए गेट लगाते हैं, उस गेट को बोलते हैं क्रॉस रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर बोलते हैं उसको जो कि हम लोग ऑफटेक के हेड पे लगाते हैं, ऑफटेक में कितना हेड पानी का जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। सो यहाँ पे हेड रेगुलेटर की बात हो रही है, हेड रेगुलेटर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखो आपको अच्छे से दिखेगा। सो समथिंग लाइक दिस, देयर इज अ गेट, ये गेट है, ठीक है, ऐसा गेट वेट बना हुआ है यहाँ पर, और इसका मैं फ्लोर बना देता हूँ। हर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का फ्लोर होता है कि नहीं, तो वैसे ही इस हेड रेगुलेटर का भी फ्लोर है, ठीक है, इस हेड रेगुलेटर का भी ऐसा एक फ्लोर है, तो ये रहा इसका फ्लोर, ऐसा, ठीक। तो अब इस हेड रेगुलेटर के एक साइड में है हमारा पेरेंट कैनाल और एक साइड में है हमारा ऑफटेक कैनाल, यहाँ पे है ऑफटेक, ठीक है। पेरेंट में मान लो डिस्चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम गेट को ओपन करके ऑफटेक से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसा वाटर का मूवमेंट है, जो मैंने एरो दिखाया है, the arrow directions which I am showing are the movement of water. So parent movement is like this, and when you open these gates, lift up or open these gates, the offtake takes the water from that, and this gate has this floor below that. For every hydraulic structure will have a floor, and therefore this gate also has, and this is the head regulator. This is the head regulator. Now coming to the question, what are they asking? क्या पूछा जा रहा है इसमें? मोस्ट सीवियर कंडीशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर कब होगी? व्हेन विल बी द मोस्ट सीवियर कंडीशन ऑफ द अपलिफ्ट प्रेशर बिलो द फ्लोर थ्रू आउट द एरिया ऑफ द फ्लोर। इमेजिन, ये मैंने तो कॉर्नर्स में एरो दिखाया है, लेकिन नीचे नीचे और पूरा एरिया इमेजिन करो जिसमें कि अपलिफ्ट फोर्स लग रहा होगा। कब होगा? सबसे वर्स्ट कंडीशन, सीवियर कंडीशन, द फ्लो इन द रिवर इज एट फ्लड लेवल। अच्छा, ये रिवर के लिए हेड रेगुलेटर है, तो ये जो पेरेंट है हमारा, ये कोई कैनाल नहीं है, पेरेंट हमारी एक रिवर है, और वहां से रिवर से हम एक कैनाल निकाल रहे हैं। तो ऐसे में भी हम क्या बोलेंगे उसको? हेड रेगुलेटर ही तो बोलेंगे, क्योंकि अब ऑफटेक हमारा कैनाल है, पेरेंट हमारी रिवर बन गई, ठीक है। तो द फ्लो इन द रिवर इज एट फ्लड लेवल एंड द कैनाल इज रनिंग एट फुल सप्लाई डेप्थ। इसको 2D में बनाकर दिखाता हूं मैं। पहला ऑप्शन सभी को बना के दिखाऊंगा मैं, और आप खुद ही यहां से जज कर पाओगे कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। द फ्लो इन द रिवर इज एट हाईएस्ट फ्लड लेवल एंड कैनाल इज रनिंग एट फुल सप्लाई लेवल, ऐसा है। तो ये कैनाल है, ये रिवर है, ऐसा है। तो अब अपलिफ्ट कैसे होता है? जब सीपेज हो रहा होता है तो सीपेज का हेड भी तो होना चाहिए। यहाँ पे सीपेज का हेड कम है कि नहीं है? द हेड कॉजिंग द सीपेज is lesser, and therefore the seepage discharge is lesser, therefore the uplift pressure which is being caused due to the difference in the pressure, difference in the head is also less. तो पहला वाला होता हुआ दिख नहीं रहा है। कंपेयर करो बाकियों से भी, देखो B, the canal runs dry and the river flow is at high flood level। मतलब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है इस तरीके का जिसमें कि ये HFL पे है रिवर और कैनाल पूरी तरीके से खाली है। इस केस में हमारा H बहुत बड़ी वैल्यू देगा कि नहीं? H बहुत बड़ी वैल्यू, क्योंकि ये हाईएस्ट है और वो 0 है, तो ऐसे में सीपेज सबसे ज्यादा हो जाएगा। सेकंड एक आंसर लगता तो है, लेकिन हाँ डेफिनेटली हमें बाकियों से भी कंपेयर तो करना पड़ेगा। सी ऑप्शन देखिए, सीधा सी ऑप्शन।
The canal runs at full supply depth and the river flows at pond level. Remember, pond level is a normal level during non-monsoon period. Monsoon period में highest flood level होता है, non-monsoon period में एक normal pond level या normal pool level होता है जो कि HFL से कम होता है. ये है HFL. फिलहाल C ऑप्शन जो है वो उसमें पॉन्ड लेवल बताया गया है और ये बताया गया है फुल सप्लाई लेवल. इसमें भी जो हेड डिफरेंस होगा ये काफी कम आएगा कि नहीं? ये भी हेड डिफरेंस बहुत कम होगा. नॉर्मल पूल लेवल नॉन मॉनसून पीरियड्स में जो पानी का लेवल होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल पूल लेवल. मॉनसून में जो आता है वो होता है हाईएस्ट फ्लड लेवल, वो भी वर्स्ट मॉनसून वाला. इसके रिटर्न पीरियड वगैरह हाइड्रोलॉजी में भी कैलकुलेट करते हैं अपन. ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि एक इरिगेशन इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट में ही सब कुछ होगा, नहीं. कुछ पार्ट इसका OCF में जाएगा, है ना. हर सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग पूरी इंटरलिंक्ड है. आप हर चीज एक ही सब्जेक्ट में नहीं पढ़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें. तो जो पानी वाले सब्जेक्ट्स जैसे OCF है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इरिगेशन है, एनवायरनमेंट है और हाइड्रोलॉजी है, ये पांचों सब्जेक्ट्स पूरे वाटर को कवर कर लेते हैं. वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है हर चीज को कवर कर लेते हैं ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक जंप वगैरह के बारे में आप पढ़ोगे OCF में, जहाँ पे आप समझ पाओगे. स्टैंडिंग वेव क्या होता है वो समझोगे वहाँ पे. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स में समझेंगे. तो ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में हर चीज होगी, लेकिन हाँ जब आप बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ते चल जाएंगे ना तो यू विल बी कनेक्टिंग द डॉट्स. अगर मैं पढ़ा रहा होता आपको OCF तो डेफिनेटली आई वुड हैव स्टार्टेड विद द हाइड्रोलिक जंप देयर इटसेल्फ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ही पढ़ाना है. लेकिन देयर इज अ डेडिकेटेड फैकल्टी टू टीच यू ओपन चैनल फ्लो, है ना. तो भाई उनका काम है, वो उनको उनका काम करने देते हैं अपन, उनके काम में बीच में दखल नहीं देते. ठीक है, चलो देखते हैं. डी ऑप्शन देखो, द कैनाल रन्स ड्राई एंड द रिवर फ्लो इज एट पॉन्ड लेवल. तो ये देखो, द कैनाल इज ड्राई, तो कैनाल ड्राई है एंड द रिवर फ्लो इज एट नॉर्मल पॉन्ड लेवल. इसमें भी हमको एक अच्छी खासी H की वैल्यू दिखेगी, इसमें भी एक H की वैल्यू अच्छी खासी मिलेगी. लेकिन जो सबसे ज्यादा H की वैल्यू मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी हमारे B केस में, जहां पे सीपेज सबसे ज्यादा होगा और अपलिफ्ट प्रेशर भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा ड्यू टू अ लार्ज डिफरेंस इन द हेड्स. सो दिस इज आउट ऑफ द 4 केसेस गिवन, दिस इज द मोस्ट सीवियर कंडीशन एंड दस दिस विल बी अवर आंसर. तो मैंने आपको H की वैल्यू से समझा दिया, जिसमें H की वैल्यू ज्यादा है आपका आंसर वो होगा, बात ही खत्म. जिसमें H की वैल्यू ज्यादा है, हेड डिफरेंसेस ज्यादा हैं, वो आपकी आंसर हो जाएगी. ठीक है, ऑल राइट. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सिंपल है. कैनाल ड्रॉप, कैनाल एस्केप, कैनाल क्रॉस रेगुलेटर, कैनाल आउटलेट्स. मैच कराना है कंट्रोल ऑफ फ्लो डेप्थ, कंट्रोल ऑफ बेड ग्रेड, कंट्रोल ऑफ फुल सप्लाई लेवल एंड कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज. तो आप लोग तो निकाल भी चुके होंगे. आंसर है इसका डी. क्या है आंसर? है इसका डी. 6th का थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो 6th का आंसर है डी. वी हैव सीन दैट इन थ्योरी, सो आंसर इज डी. 7th, the sharp corners in the cross section of a canal are rounded. Are they? लिखा है sharp corners in the cross section of the canal are rounded. करते हैं राउंडिंग? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सही बात है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. Second one, the corners may not become the zones of stagnation. I have told you this already in the design of canals chapter, that yes, the sharp corners, if we tend to make them in this circular way, so there the zones of stagnation are gone. They become the zone of stagnation and they are gone if we round them off like this, isn't it? So yeah, that is also a correct statement, but is the answer A or B? Combine those statements. I have given you the trick already. मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि A और B में कैसे आइडेंटिफाई करना है, आप जानते हैं. देखिए, the sharp corners in the cross section of a canal are rounded because the corners may not become the zones of stagnation. सही बात है. Yes, हम sharp corners को round इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि sharp corners जो है वो zones of stagnation बन जाएं. सही बैठ रहा है मामला एकदम? Yes, so answer is A. So 7th का आंसर हो जाएगा A. ठीक. इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ द सेंसिटिविटी ऑफ एन इरिगेशन मॉड्यूल इज हाफ
अगर सेंसिटिविटी इरिगेशन मॉड्यूल की हाफ है और 50% वेरिएशन इन कैनाल वाटर डेप्थ विल कॉज x% वेरिएशन इन आउटलेट डिस्चार्ज. सिंपल. सेंसिटिविटी इज इक्वल टू dq by q divided by dy by y, and sensitivity is given as 0.5, and they are asking what will be the variation in outlet discharge given a 50% variation in the canal water depth. That means this is 50%, or you can say 0.5 also. dy by y है, अब इसको 0.5 लिख सकते हैं. तो what will be the variation here? That will be 0.25, or you can say 25%. That will be our answer. So our answer for 8th one will be 25%. Got it? चलिए, so this completes this particular chapter. Now we are going to start with the next chapter. अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एक बार ये वाला दिखा दो आप, 5th वाला. ठीक है, हो गया. चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. Our next chapter is the theories of seepage. Theories of seepage. Before studying that, पहले हम ये समझते हैं कि what is this phenomena of seepage? What is this phenomena of seepage? हम हर जगह बोलते हैं ना seepage, seepage बोलते हैं. मैंने आपको बता के भी रखा है वैसे, बट यहाँ पे थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे और seepage को और अच्छे से समझेंगे. देखिए, सीपेज एक जनरल वर्ड है. सबसे पहली चीज मैं बात करूं सीपेज की. सो सीपेज इज अ जनरल टर्म. सीपेज इज अ जनरल टर्म यूज्ड synonymously with percolation also. Seepage is used synonymously with percolation. They represent the movement of water in the interstices of the soil. They represent the movement of water in the interstices of the soil. जो soil के बीच बीच में जो pores है in the voids of the soil, they represent the movement of that. If that phenomena is going on, then we'll say seepage. देखिए, अगर पानी सिर्फ पड़ा हुआ है, अगर पानी सिर्फ रखा हुआ है कहीं पे सॉइल के अंदर और वो मूव नहीं कर रहा है, तो देयर वोंट बी, वी वोंट कॉल इट एज अ सीपेज. फॉर द सीपेज फिनोमिना इज अ फिनोमिना व्हिच टेल्स यू दैट समथिंग इज हैपनिंग. कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है. उस फिनोमिना को सीपेज कहा जाता है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे दीवारों में सीपेज होता हुआ दिख रहा है, तो बाहर से पानी अंदर सीप करता हुआ वॉइड्स के थ्रू, क्रैक्स के थ्रू अंदर आ रहा है, तो दैट फिनोमिना इज रेफर्ड एज सीपेज. बरसात के बाद सीपेज हो गया, मतलब सीपेज का फिनोमिना हो गया, बरसात क्योंकि खत्म हो गई. समझे? तो सीपेज जो है वो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द इंटरस्टाइसेस ऑफ द सॉइल है. वैसे ये होता 3D में है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम लोग इसको बेटर वे में, ईजियर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए 2D के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. आई वोंट से इट एज अ बेटर वे, बट या इट विल बी डेफिनेटली एन ईजियर वे. फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं, फ्लो नेट जिसको कहते हैं, जिसमें कि फ्लो पाथ होता है, फ्लो चैनल्स जिसको बोलते हैं. फ्लो चैनल्स आर मेड अप ऑफ फ्लो लाइन्स एंड देयर विल बी इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स देयर. That is how we represent in soil mechanics. In the soil mechanics, in the theories of seepage chapter, soil mechanics में भी seepage theory का chapter है, और यहाँ भी हम लोग seepage theory ही पढ़ रहे हैं. फर्क क्या है फिर दोनों में? Soil mechanics में जो seepage theory वाला chapter है, उसमें आप basically focus करेंगे Darcy's law पे. Darcy's law क्या है? Darcy's law simply है कि भाई जो velocity flow through the soil होता है proportional to hydraulic gradient होता है. The velocity of flow through the soil is proportional to the hydraulic gradient. ठीक है, between those 2 points in between which the seepage is happening. So that is a theoretical way, and in that there are various assumptions, such as we have assumptions like the soil should be homogeneous, isotropic, semi-infinite, and these cases in the soil जो movement होना चाहिए वो laminar है, तो ये सब assume कर लेते हैं. तो वो theoretical तरीका है, that is a theoretical way of understanding. But the practical design of the floor or a foundation, is done by various researchers. कुछ researchers ने सीपेज फिनोमेना को प्रैक्टिकली बताने के लिए कुछ थ्योरीज डेवलप करी. उन थ्योरीज को हमको पढ़ना है. अब ये जो थ्योरीज हैं, इसमें से जो मोस्ट प्रैक्टिकल थ्योरी है, जिसमें एजम्पशंस लीस्ट लगते हैं और एक्यूरेसी मैक्सिमम होती है और वर्ल्ड वाइड यूज होती है, दैट थ्योरी
is, my dear friends, the Khosla's theory of seepage. That is the Khosla's theory of seepage. That is the most intensive, extensive theory which is proposed by Khosla after doing 17 years of research. Khosla and his team of 6 more members, उन्होंने जो जर्नल लिखा है अपना, उसमें टोटल 7 लोगों के नाम है. एक खोसला, A.N. खोसला तो हैं ही, उनके साथ साथ 6 लोग और हैं. इतनी बड़ी टीम, हाईली लर्नेड और हाईली यू कैन से एक्सपीरियंस्ड लोग, इन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी को डेवलप किया, प्रपोज किया. Of course, the head was the Khosla. That is why we say it as the Khosla's theory. But Khosla had his associates also, and they rigorously analyzed this for a period of 17 years and developed a theory. And that Khosla's theory is practically used nowadays for the design of these foundations or the floors below the hydraulic structures. कोई भी hydraulic structure ले लो, चाहे डैम ले लो, चाहे आप कोई बैराज ले लो, हेड रेगुलेटर जैसे भी देख रहे थे उसके नीचे का फाउंडेशन बताए वो ले लो, तो खोसलास थ्योरी ऑफ सीपेज ही यूज होता है इन सब के नीचे के फाउंडेशन को डिजाइन करने के लिए, कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, अपलिफ्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सीपेज हेड कितना आ रहा है, उससे आपको काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए. सो नाउ डेज वी यूज खोसलास थ्योरी ओनली, विच इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंटेंसिव वन. बिफोर खोसला देयर वर अदर रिसर्चर्स ऑल्सो. खोसला के पहले कुछ और रिसर्चर्स भी थे. दे वर ब्लाई and Lane. They were most notable. There were others also before them also. उनके पहले भी और लोग थे, लेकिन जो most notable थे वो थे ब्लाई और लेन. ब्लाइज क्रीप थ्योरी और लेन्स वेटेड क्रीप थ्योरी. ठीक है, ब्लाइज क्रीप थ्योरी और लेन्स वेटेड क्रीप थ्योरी. They were the most notable ones before Khosla. Khosla finally developed all of these things, equations, curves, transformation curves and everything. He developed this in around 1960s. उस समय ये कंप्लीट हुआ. उसके बाद फिर यही यूज होने लगा हर जगह और थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होता है. ठीक है, तो बात समझिएगा कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या करना है और ये कैसे डिफर करता है विथ योर सॉइल मैकेनिक्स, द सेम चैप्टर. इन द सॉइल मैकेनिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्लो नेट्स, द डार्सीज लॉ एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग, द अर्दन डैम, द फ्रीएटिक लाइन कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ दीज, अर्दन डैम के बारे में, फ्रीएटिक लाइन के बारे में, वो जो पैराबोला बनता है उस पैराबोला की इक्वेशन के बारे में, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, फोकस के बारे में, ये सब आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे. ये सारी की सारी चीजें सॉइल मैकेनिक्स में उस चैप्टर में पढ़ेंगे. यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो बात करना है कि जो प्रैक्टिकल जो थ्योरीज प्रपोज की गई हैं डिजाइन करने की, वो क्या है, वो क्या है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज the theories of seepage. So I told you what is the seepage phenomena and what is the scope in irrigation engineering. Okay, so theories of seepage, that's our chapter. Now in this chapter there are 3 theories which we are going to study. The first theory will be Bly's creep theory. The second theory will be Lane's weighted creep theory, Lane's weighted creep theory, and the third one is Khosla's theory. The third one is the Khosla's theory. Okay, Khosla's theory. So these 3 theories we are going to understand. Now understand one more thing. Bly's और Lane's काफी easy theory है, तो आज भी देखिए खोसलास थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. देखो जो चीज़ें ऑब्वियसली बात है आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके दे रही हैं तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो होंगी, मुश्किल तो होगा कैलकुलेशन करने में. सो वेरेवर वी नीड सम अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, टिल टुडे ब्लाइज थ्योरी एंड लेन्स वेटेड क्रीप थ्योरी आर यूज्ड टू गेट एन अप्रॉक्सीमेट बट अ मच ईजियर एनालिसिस. And then to design it in a detailed way, definitely the designers take this Khosla's theory into consideration. Without that, it cannot be done. It cannot be done. Got the point? Now, what is our scope? We'll study these 2 theories. We'll understand their assumptions, their drawbacks, everything. And we'll also understand how the Khosla's theory overcomes these drawbacks. Okay, that is also. But our scope of Khosla's theory is not to design it completely wholly. Our scope is just to get a bird's eye view of the Khosla's theory. A bird's eye view. Because Khosla took the observations from Schwarz-Christoffel transformation equations, and those observations were incorporated here.
सो अगर खोसलास थ्योरी पे जाएंगे तो हमें पहले जाना पड़ेगा श्वार्ट्ज क्रिस्टोफेल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पे, उनके कर्व्स बनते हैं। एस के गर्भ में देखिए वो बड़े बड़े कर्व्स मिलते हैं बने हुए, उस तरह के वो श्वार्ट्ज क्रिस्टोफेल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व्स होते हैं, ठीक है। वो बुक के साथ मिलते हैं ना, बड़े बड़े शीट्स ऑफ कर्व्स मिलते हैं, तो दोज आर देयर। So we don't have to go into those things because those will not be given to you in the exams also. ये आपको एग्जाम में दिया भी नहीं जाएगा। The thing which is of importance for pre, for GATE, okay, and other PSC's examination, PSU examinations, is the bird's eye view of Khosla's theory. The assumptions, the recommendations, the methodology devised by Khosla, not the complete method, just the overview of the methodology, and also the Khosla's exit gradient theory. That is of very much importance here. Khosla's exit gradient theory. ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़नी है। तो I told you the scope of our this whole theories of CPH chapter. Now, before going into these theories, let us first talk about some common basics which all these three researchers talk about. Before going into these theories, let us first talk about some common basics which all these researchers talk about. Let us talk about the failure of a foundation which is a floor. Failure of a floor. Let us talk about failure of a floor. I told you that कि hydraulic structures में जो foundation होता है वो floor के जैसा होता है। तो यहाँ पे अगर हम floor बोले तो समझ जाना floor का मतलब है foundation, या foundation बोले तो foundation का मतलब समझ जाना floor है, vice versa, ठीक है, because the foundation of an hydraulic structure is just like a floor. Okay, there are two ways in which the floor failure can happen. दो तरीके हैं जिससे फ्लोर का फेलियर हो सकता है। पहला इसको कहा जाता है फेलियर ड्यू टू पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। पाइपिंग बोलिए या अंडरमाइनिंग बोलिए, एक ही बात है। फेलियर ड्यू टू पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। और जो दूसरा है फेलियर ड्यू टू अपलिफ्ट। फेलियर ड्यू टू अपलिफ्ट, ठीक है। अपलिफ्ट को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ रहे हैं, फील कर पा रहे हैं अपलिफ्ट, राइट। तो वो अपलिफ्ट, फेलियर ड्यू टू अपलिफ्ट, ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाना, और हमारा दूसरा है, पहला है फेलियर ड्यू टू पाइपिंग और अंडरमाइनिंग, ठीक है। तो ये दो फेलियर्स की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, एक ये और एक ये। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग फेलियर ड्यू टू पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। लेट्स फर्स्ट फोकस हियर, बट बिफोर गोइंग टू द फेलियर, फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज पाइपिंग और अंडरमाइनिंग फिनोमेना। अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। See, there is this hydraulic structure. Now I told you that everything happens in 3 dimension, but for our ease in analysis, we represent it in 2D. Okay, so this is our hydraulic structure. This may be a weir, this may be a barrage, this may be a regulator, gates, anything. And on the upstream and the downstream side of this hydraulic structure, on the upstream and the downstream side of this hydraulic structure, there is water. That is why it is made, right? So let us suppose this is the water and this is the head difference. This is the head difference. Understand, more the head difference, more will be the phenomena of seepage, isn't it? जितना ज़्यादा head difference होगा उतना ही ज़्यादा seepage की tendency होगी, because water will try to equalize its head on both the sides, and therefore there will be seepage. From where to where? From left to right in this case. From here to here, like this. Okay. Now, what is this piping or undermining is? What happens is, when the water particles come out, see, these are the water particles. Blue color represents the water particles in between the soil. So, I am representing it in a simple form like this. I am representing it in a simple form. So this is a kind of a flow line, you can say, and similarly there will be so many flow lines. That means those water particles, they may not be always looking like this, but for simplicity I have shown you like this, that what happens. Understand that this is the outermost water particle, this one which I have shown in bold, this is the outermost water particle, and this is about to come out. ये सबसे बाहरी वाटर पार्टिकल है और ये जस्ट बाहर आने वाला है।
जस्ट बाहर आने वाला है। जब ये सॉइल के बाहर आने वाला होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तभी ना मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है मतलब एनर्जी है, नहीं तो एनर्जी नहीं होती तो मूवमेंट ही नहीं होता, वहीं पे रहता। तो इट विल हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हियर, इट विल हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हियर। तो एनर्जी तो होगी। अब हमें ये देखना है कि एनर्जी कितनी है, हाउ मच एनर्जी इट पॉजेस। गॉट द पॉइंट? नाउ व्हेन इट कम्स आउट, इफ इट हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी and it comes out through the soil particles, so it is something like this. I'll show you after zooming this. देखिए, these are the soil particles. This black color represents the soil particles and this is the water particle which is trying to come out. So this is the, ये water को दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ just to ensure that you are able to see it properly. And this particle tries to come out. If it has sufficient amount of energy, then it will displace these soil particles on the downstream side, and also if it has sufficient amount of energy, along with water, these particles can also come out. These particles can also come out. The water will push these particles because it has energy, and these particles can also come out, and that's how the displacement of the soil particles will also happen. When the displacement of the soil particle here will happen, when the displacement of soil particle here will happen, there will be a hollow space. तो जब soil के particles पानी की एनर्जी की वजह से बाहर आ जाएंगे, जब soil के particles पानी की एनर्जी की वजह से बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक hollow space हल्की सी क्रिएट होगी, छोटा सा क्रेटर, छोटा सा गड्ढा दिखेगा। मतलब कैसा दिखेगा? अब मैं इसको फिर से दिखा रहा हूँ, अब इसको हटा करके मैं दिखा रहा हूँ, तो अब soil में आपको इस तरीके का ऐसा गड्ढा दिखाई देगा। ऐसे क्यों? क्योंकि वहाँ के soil particles पानी ने निकाल लिए। अब पीछे से और भी पानी आएगा। अब अगर मान लो उसके पास भी एनर्जी है तो वो और पार्टिकल सॉइल के निकालता चला जाएगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे सॉइल के बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते चले जाएंगे एक फ्लो लाइन के अलोंग, और एक हॉलो स्पेस इस तरीके की धीरे धीरे क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब इस तरीके की एक हॉलो स्पेस क्रिएट होगी तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के नीचे ऐसा हॉलोनेस आना अच्छी बात है क्या? इज इट अ गुड थिंग दैट देयर इज अ हॉलोनेस बीनीथ द स्ट्रक्चर लाइक दिस? अब इतना हॉलो आने से पहले ही आप समझिए, दिस इज नॉट इन वन सेक्शन, दिस इज एवरीवेयर इन 3D इमेजिन, दिस इज एवरीवेयर। एंड इफ देयर इज अ सच काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर इज creating this hollow space there because water has energy, and not only this, there will be nearby also and there will be randomly happening. ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसा होगा ऐसा नहीं है जरूरी। हो सकता है कि आसपास में से 10 जो है हॉलो स्पेसेस नीचे नीचे क्रिएट हो, जो कि पाइप जैसे दिखते हैं, जो कि पाइप जैसे दिखते हैं, और वाटर उनको वाटर सॉइल पार्टिकल्स को आगे धक्का देते जाता है और सब के सब बाहर निकलने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे एक पार्टिकल 2 पार्टिकल निकलता है, फिर जो बाकी बचे हुए पार्टिकल्स हैं पानी उनको भी पुश करते जाता है और सब के सब बाहर निकलने लग जाते हैं। ऐसा करते करते एक हॉलो स्पेस क्रिएट होती है। जरूरी नहीं है कि पूरी हॉलो स्पेस क्रिएट होगी तभी स्ट्रक्चर नीचे सबसाइड करेगा, स्ट्रक्चर नीचे धंस जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि पूरी हॉलो स्पेस क्रिएट हो तब ऐसा होगा ना, ये डिफरेंशियल सेटलमेंट भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि पूरी हॉलो स्पेस क्रिएट नहीं भी हुई, लेट अस सपोज देयर इज दिस ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ हॉलो स्पेस क्रिएटेड एंड द रेस्ट इज फाइन। अभी ये सब पूरा का पूरा सॉइल ही है, तो ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ हॉलो स्पेस इज क्रिएटेड। अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल एक्सपीरियंस हॉलोनेस एंड देयरफॉर देयर विल बी नथिंग हियर, दिस इज अ हॉलो। और ये क्या होगा, एक छोटा सा पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर भी डिफरेंशियली सेटल कर सकता है। हो सकता है कि ये पार्ट ऐसे क्रैक हो जाए और ये पोर्शन नीचे सेटल कर जाए, ये पोर्शन नीचे ऐसे सबसाइड कर जाए, इस तरीके से ऐसे धंस जाए, ये ऐसा हो सकता है। अगर एक पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर भी फेल हो गया तो स्ट्रक्चर तो फेल ही हो गया। तो जरूरी नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर के नीचे पूरा पाइप बनेगा, पूरा फॉर्मेशन होगा तब ऐसा होगा ना। थोड़े थोड़े में भी आप अगर मान लीजिए नीचे हॉलो स्पेस देख रहे हैं स्ट्रक्चर के नीचे, तो वहां पे भी इस तरीके का फेलियर हो सकता है। पार्शियल फेलियर, डिफरेंशियल फेलियर, डिफरेंशियल सेटलमेंट, ये हो सकता है। तो अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो यही इसी फिनोमेना को बोलते हैं पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। और जो फेलियर होता है दैट इज सिंपली रेफर्ड एज फेलियर ड्यू टू पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। गॉट द पॉइंट क्लियर? नाउ द थ्योरी सजेस्ट व्हाट? दीज आर द थ्योरीज. These are the theories. Now what they suggest? They suggest some remedial measures.
Now I am not talking about this theory suggests what, this theory or this theory. No. All these theories suggest some common remedial measures to prevent this failure. So let us talk about the remedial measures. The first and the most important remedial measure is to provide sheet piles or cutoffs. Provide sheet piles or cutoffs. Sheet piles or cutoffs. What are these sheet piles or cutoffs? शीट पाइल बोलिए या कट ऑफ बोलिए, ये एक लैमिना के जैसे दिखते हैं जिसमें कि इनकी जो गहराई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, सरफेस एरिया बहुत होती है और इनका जो थिकनेस होता है ये रिलेटिवली कम होता है. दे लुक लाइक दिस. दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया बट दे डोंट हैव मच ऑफ द थिकनेस. दे लुक लाइक दिस. If I'll speak in terms of absolute terms, they will look like your copy or maybe this my iPad or your mobile. So they will look something like this. They will have a huge amount of surface area, but their thickness will be lesser. Thickness will be lesser. Okay. These are called as sheet piles or cutoffs. What do they cut off? क्या काट देते हैं ये जो ऐसा बोला जा रहा है cut off? They cut off the flow path. That is why they are called as cutoffs. They cut off the फ्लो पाथ. तो कहां पे लगाते हैं इन शीट पाइल्स को? बात समझिए. इन शीट पाइल्स को हम अपस्ट्रीम साइड में लगा सकते हैं, इन शीट पाइल्स को हम डाउनस्ट्रीम साइड में लगा सकते हैं, इन शीट पाइल को हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे भी लगा सकते हैं. इन शीट पाइल्स को हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे भी लगा सकते हैं. तो दिस इज इन जनरल अबाउट शीट पाइल. तो इसको आप आखिरी में नोट में वगैरह डाल सकते हैं, शुरुआत में भी डाल सकते हो नोट में, कि ये शीट पाइल्स को अपस्ट्रीम साइड, डाउनस्ट्रीम साइड और इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे लगाया जा सकता है. ठीक है. ये इम्परवियस बनाए जाते हैं. किस मटेरियल के होते हैं ये? यूजुअली स्टील के हो सकते हैं. आजकल एल्यूमिनियम की शीट्स भी मिलती हैं, वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं. ये कंक्रीट के भी हो सकते हैं. ये कास्ट इन सीटू भी हो सकते हैं, प्री फैब्रिकेटेड, प्री मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकते हैं और उसको फिर अपन केसिंग के साथ प्लेस कर देते हैं. कास्ट इन सीटू भी हो सकते हैं. इसी शीट पाइल का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउट कर्टेन. इसी शीट पाइल का एक स्पेशल केस होता है, उसको बोलते हैं ग्राउट कर्टेन. मैंने आपको बोला था ये मैं बताऊंगा आपको आगे, डैम्स वाले चैप्टर में बताया था आपको, ये बताऊंगा आगे. ग्राउट कर्टेन एक पॉइंट था कि ग्राउट कर्टेन इज प्रोवाइडेड एट द डाउनस्ट्रीम एंड टू रिड्यूस द एग्जिट ग्रेडियंट. ये पॉइंट था वहां पे डैम्स वाले चैप्टर में. बस उसी का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा अभी. ग्राउट कर्टेन क्या होता है? सबसे पहले उसको समझने के लिए ग्राउटिंग समझ लीजिए. बीएमसी आपका चल ही रहा है, ग्राउटिंग वगैरह आप जान रहे हैं, है ना? फिर भी मैं बता देता हूँ. ग्राउटिंग होता है जिसमें हम लोग ग्राउट बनाते हैं. ग्राउट में क्या होता है? सीमेंट, सैंड और वाटर. सीमेंट और सैंड और वाटर इन रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, मतलब थोड़ा पतला पेस्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्राउट. तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, जैसे डैम है, ठीक है, और वो डैम का फाउंडेशन है. जैसे ये डैम है और ये डैम का फाउंडेशन है. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द डैम. सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द डैम. व्हाट डू वी डू टू रिड्यूस दिस फिनोमेना ऑफ पाइपिंग और अंडरमाइनिंग? अब डैम के नीचे थोड़ा सा ड्यूरेबल तरीके से ग्राउट कर्टेन प्रोवाइड किया सकता है, अपस्ट्रीम में भी, डाउनस्ट्रीम में भी. अपस्ट्रीम में भी, डाउनस्ट्रीम में भी. क्या करके? यहाँ पे पहले ड्रिलिंग की जाती है, एक हॉलो स्पेस क्रिएट किया जाता है. ड्रिलिंग करके एक हॉलो स्पेस क्रिएट करते हैं. सो दिस इज नाउ हॉलो. दिस इज अ हॉलो स्पेस. अपस्ट्रीम में भी करते हैं, डाउनस्ट्रीम में भी करते हैं, दोनों जगह में किया जाता है. अपस्ट्रीम में भी, डाउनस्ट्रीम में भी. क्यों करते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अभी समझ जाओगे अभी सब. ऐसा हॉलो स्पेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे पूरी की पूरी सीमेंट पेस्ट को यहाँ पे भर देते हैं. सीमेंट की जो हमने ग्राउट बनाया है उसको यहाँ पे भर देते हैं और प्रेशर लगा करके बढ़िया से उसको यहाँ पे फिल कर देते हैं. अब ये क्या काम करता है? ये इसी फ्लो को इंटरसेप्ट करने का काम करता है. ये फ्लो की लेंथ को बढ़ाने का काम करता है. जो सीपेज होता है इट इंक्रीजेस द फ्लो लेंथ. नाउ द फ्लो कैन नॉट पास थ्रू दिस बिकॉज दिस ग्राउट आफ्टर सेटिंग, ये ग्राउट जब सेट हो जाएगा यहाँ पे तो फिर सेटिंग के बाद ये इम्परवियस हो जाएगा. Now the water cannot flow through that. Water has to flow around that.
So water will flow like this, and when the water will flow like this, समझो ऐसा, बड़ी सिंपल सी भाषा में अगर बोले तो जब हम कट ऑफ या शीट पाइल लगाते हैं, ये भी एक तरीका कट ऑफ या शीट पाइल ही है। हाँ, ये प्री फैब्रिकेटेड नहीं है, ये स्टील का एल्यूमिनियम का नहीं है, ये सीमेंट का होता है। इसको ग्राउट कर्टेन बोलते हैं। कर्टेन क्यों बोलते हैं? आपके घरों में पर्दे देखे हो, यू हैव सीन द दिस पर्दा इन योर होम्स, राइट? तो ये जो पर्दे हैं आपके घरों में, कर्टेन है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है कि नहीं? सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, थिकनेस कम है, बिल्कुल वही चीज है। इसका सरफेस एरिया इमेजिन करिए 3D में, ये आ रहा है आपकी तरफ, कुछ इस तरीके का है, तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। जितना लेंथ ऑफ द डैम होगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, द सेम विल बी द लेंथ ऑफ दिस ग्राउट कर्टेन। सो इट्स सरफेस एरिया इज क्वाइट ह्यूज एंड ऑल्सो इट इज इम्परवियस। सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज यू, ठीक है? ये कौन है? ये हो आप, ठीक है? एंड दिस इज 100 मिलियन, दिस इज 100 मिलियन बिल्डिंग, ठीक है? ये है हमारी 100 मिलियन बिल्डिंग, ठीक है? 100 मिलियन किसकी बिल्डिंग है? ये हमारी मेडिसी की बिल्डिंग का नाम है ना, 100 मिलियन। सो दिस इज अवर 100 मिलियन बिल्डिंग, ठीक है? एंड दिस इज यू वांट टू रीच मेडिसी, either you can reach from your location to the 100 million building in the shortest path possible, or you can go here and there, roam around here and there, and then come to this 100 million building. So this is your path 1, this is your path 2. एक पाथ में सीधा सीधा आ गए और दूसरे पाथ में घूम फिर के आ रहे हो इधर उधर से। तो in which of these paths you will experience more energy loss? The second one. More energy loss will be in the second one, and that's what our aim is here. Our aim is not here, this thing, कि energy loss करवाना. In this case, one would be better. But in this case, if we have a diversion and the flow is not happening along the shortest path, rather it is moving here and there and then reaching out, then coming out, then it is a better case because it loses more energy, and since it loses more energy, the energy at the exit reduces. The energy at the exit is represented in the form of the exit gradient. The energy at the exit is represented in the form of exit gradient. कैसे represent करते हैं? Exit gradient. कैसे लिखते हैं वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए समझो जो एनर्जी होती है उसको ग्रेडियंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एग्जिट ग्रेडियंट कम हो जाता है जब हम इस तरीके का या तो ग्राउट कर्टेन, ग्राउटिंग कर दिया हमने, या फिर हम शीट पाइल लगा दें, एल्यूमिनियम स्टील की शीट पाइल लगा दें, कंक्रीट की शीट पाइल लगा दें, ग्राउट कर्टेनिंग कर दें, तो एग्जिट ग्रेडियंट कम हो जाता है। इस केस में जहाँ पे पाइल्स नहीं है, यहाँ पे जो एग्जिट ग्रेडियंट होता है, मतलब एग्जिट के समय जो एनर्जी, इन सिंपल टर्म्स मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, लेकिन सिंपल टर्म्स में एग्जिट के समय जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बड़े ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जिट के समय जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जिट ग्रेडियंट यूज होता है। उसकी वैल्यू एग्जिट ग्रेडियंट नहीं होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जिट ग्रेडियंट होता है। तो एग्जिट के समय जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जिट ग्रेडियंट यूज होता है। तो यहाँ पे एग्जिट ग्रेडियंट ज्यादा है, यहाँ पे एग्जिट ग्रेडियंट कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर इज ट्रैवर्सिंग मोर पाथ। Since it is traversing more path, it will lose more energy, and therefore energy at the exit will come down. And when energy at the exit will come down, the phenomena of piping will not be caused if designed properly. अगर ढंग से डिजाइन किया गया है तो पाइपिंग नहीं होगी। ढंग से डिजाइन करने के लिए यही तो है थ्योरीज, अच्छे से डिजाइन करने के लिए we have these theories, right? So with the help of these theories, we are going to design. So this is the first remedial measure. What is the first remedial measure? To provide sheet piles or cutoffs at which end? At maybe you can provide at the downstream end, and you can also provide at the upstream end. ठीक है, ये जनरल बात कर रहा हूँ मैं, फिर बात करेंगे खोसला ने क्या बोला, ब्लाई और लेन ने क्या बोला, वो बात की बात है।
अब उसके बाद दूसरे की बात करते हैं। दूसरा फेलियर कौन सा है? दूसरा रेमेडियल मेजर कौन सा है? पहला रेमेडियल मेजर मैंने बता दिया, प्रोवाइडिंग शीट पाइल्स और कट ऑफ्स। दूसरा है, आप खुद ही सोचो तो, दूसरा तरीका पाइपिंग को कम करने का क्या होगा? क्या लग रहा है? लेंथ को बढ़ाना है। मैंने कहा लेंथ ऑफ द फ्लो को बढ़ाने के लिए हमने पाइल्स लगा दी, शीट पाइल्स। इंटरमीडिएट भी लगा सकते थे, तो देखेंगे अभी थ्योरी में आने के बाद। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि हम यहाँ पे लेंथ ऑफ द फ्लोर को बढ़ा दें, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द फ्लोर, increase the length of the floor. That means, think about it. If this is your hydraulic structure and this is your floor length, let us suppose the floor length is L. This is the hydraulic structure, this is the floor length L. So there is this path, flow path, that is like this. More energy available at the exit. More energy available at the exit. That means water is just about to exit and it has more to lose because it contains more. It has more energy, so it will lose more energy. ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खर्च कर सकते हो, कम पैसा होगा तो कम खर्च कर पाओगे, सिंपल सी बात है। If you have more money, you can spend more. If you have less money, you can spend less. Simple. In the similar way, if we increase the length and the same hydraulic structure is there, and if we increase the length, let us suppose L dash, I have increased the length. Now the water while traversing, it will lose more energy and before coming out, exit gradient मतलब बाहर निकलने के जस्ट पहले जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? अब कम हो जाएगी। तो शायद उसके पास उतनी एनर्जी ना हो कि वो सॉइल के पार्टिकल्स को बाहर निकाल सके। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ रेमेडियल मेजर, यू कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द फ्लोर। सो फेलियर ड्यू टू पाइपिंग इज द फर्स्ट फेलियर विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय either of the two measures. First one, providing sheet piles or cutoffs, and the second one is increasing the length of the floor. Increasing what? Increasing the length of the floor. Okay, चलो पहले हम इतना लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपलिफ्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे। ठीक है, चलो पहले इतना लिखेंगे। Let us start writing. Give the heading, theories of seepage. चलो लिखो theories of seepage. Every hydraulic structure is constructed over a foundation or a floor. Every hydraulic structure is constructed over a foundation or a floor. Every hydraulic structure is constructed over a foundation or a floor. Full stop. The hydraulic structure may fail. The hydraulic structure may fail. The hydraulic structure may fail either above the surface or below the surface. The hydraulic structure may fail either above the surface or below the surface. Full stop. Subsurface failure is due to the water seeping below. Subsurface failure is due to the water seeping below. Subsurface failure is due to the water seeping below the base of the foundation, seeping below the base of the foundation, which generates hydrodynamic forces. Which kind of forces? Which generates hydrodynamic forces. देखिए मूवमेंट ऑफ वाटर को सीपेज कहते हैं। अगर पानी मूव कर रहा है तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, हाइड्रोडायनामिक फोर्स लिखेंगे हम। सो विच जनरेट्स हाइड्रोडायनामिक forces. Change the line and write. Change the line and write. The subsurface flow
may cause, may cause, the subsurface flow may cause the failure of the floor, may cause the failure of the floor, may cause the failure of the floor due to following conditions. May cause the failure of the floor due to following conditions. Due to following conditions. First, by piping or undermining. First, by piping or undermining. Second, by uplift. Second, by uplift. By piping or undermining. Second, by uplift. By uplift. ठीक है. इसके बाद now give the heading failure due to piping. Now give the heading failure due to piping. Failure due to piping. पहले पूरा लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम डायग्राम्स बना लेंगे. Failure due to piping. Write it down. If the water percolating below the foundation, if the water percolating below the foundation, if the water percolating below the foundation has sufficient energy, if the water percolating below the foundation has sufficient energy, when it emerges at the downstream end of the floor, if the water percolating below the foundation has sufficient energy, when it emerges at the downstream end of the floor, when it emerges at the downstream end of the floor, 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 comma, it may lift up the soil particles, it may lift up the soil particles at the end of the floor. It may lift up the soil particles at the end of the floor. It may lift up the soil particles at the end of the floor. END, end of the floor. Full stop. This process of erosion extends backwards. This process of erosion extends backwards. This process of erosion extends backwards towards the upstream side. कहाँ से पहली बार जो सॉइल पार्टिकल निकलेगा, कहाँ का निकलेगा? डाउनस्ट्रीम का. धीरे धीरे फिर अपस्ट्रीम वाले भी खसकते खसकते आएंगे और आगे बढ़ते बढ़ते डाउनस्ट्रीम से ही निकलेंगे सारे के सारे, क्योंकि वाटर का फ्लो डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ है. तो दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एक्सटेंड्स बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम साइड एंड रिजल्ट्स इन द रिमूवल ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एक्सटेंड्स बैकवर्ड्स, मतलब डाउनस्ट्रीम से स्टार्ट होकर अपस्ट्रीम के पार्टिकल्स को भी टारगेट करता जाता है. एक्सटेंड्स बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम साइड एंड रिजल्ट्स इन द रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, and results in the removal of soil particles, and results in the removal of soil particles, thereby developing a pipe-like formation below the floor, thereby developing a pipe-like formation below the floor, thereby developing a pipe-like formation below the floor. Full stop. The floor may subside. The floor may subside. SUBSIDE, subside. The floor may subside in this vacant space. खाली जगह, vacant space. The floor may subside in this vacant space so formed. The floor may subside in this vacant space so formed, which is referred as failure due to piping. Which is referred as failure due to piping.
failure due to piping. Full stop. Various theories of seepage, अलग अलग जो theories of seepage हैं, various theories of seepage propose the following remedial measures. To counter piping effect. Propose the following remedial measures to counter piping effect. पाइपिंग के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए अलग अलग थ्योरीज ऑफ सीपेज प्रपोज करती है रेमेडियल मेजर्स. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थ्योरीज ऑफ सीपेज तो अपन पढ़ने ही वाले हैं, ये तो देखेंगे ही, तो अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है. तो अभी आपको क्या बनाना है? सबसे पहले आपको ये बनाना है, ये है फेलियर ड्यू टू पाइपिंग और अंडरमाइनिंग. ये दिखा दो आप, दिख रहा है ये? ठीक है, ये दिखाओ आप, स्टार्टिंग में दिखाओ. दिखा दिए? ठीक है, अब इतना हिस्सा दिखा दो बचा हुआ, ये सेकंड वाला भी लिख लेंगे. ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट वन पे. एंड द नेक्स्ट वन इज फेलियर ड्यू टू अपलिफ्ट. यहां पे आ जाइए. फेलियर ड्यू टू अपलिफ्ट. वी नो द अपलिफ्ट फिनोमिना, राइट? अपलिफ्ट हो सकता है किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के नीचे जो फ्लोर है उसकी सरफेस एरिया में पानी का दबाव लगना. देखिए ऐसा है कि हम जब सीपेज के डायरेक्शन की बात करते हैं, when we talk about the direction of seepage, we talk about some net direction, but obviously all the forces will have some components in other directions, and that vertical component is responsible for causing that uplift at various points. और uplift को एक्चुअली में निकालना बहुत मुश्किल है, इसी कारण USBR ने हमें क्या किया, बहुत ही इजी तरीका दिया अपलिफ्ट को निकालने का. उसी मेथोडोलॉजी को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. सेम मेथोडोलॉजी जो डैम के नीचे के लिए अपलिफ्ट निकालते थे वैसे हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. इट इज अप्रूव्ड. ऑलराइट, चलिए. तो एनीवेज, सो अपलिफ्ट वी नो द फिनोमेना, वी आर वेरी मच फेमिलियर विद, वी हैव कैलकुलेटेड इट, राइट? सो वी नो ऑल अबाउट इट. लेट अस टॉक अबाउट द रेमेडियल measures. The first remedial measure, my dear friends, is to increase the weight. Not the length, the weight. By increasing not the length, by increasing the thickness. Increase the weight by increasing the thickness of the floor. This is the first remedial measure. What is the first remedial measure? Increase the weight by not increasing the length, increasing the thickness. Why we are increasing the thickness and not the length? Understand. Increasing the length may serve the purpose of reducing piping, definitely. लेंथ को बढ़ाने से हमारा पाइपिंग डेफिनेटली रिड्यूस होगा क्योंकि फ्लो पाथ बढ़ गया. लेकिन अपलिफ्ट फ्लो पाथ पे थोड़ी, टोटल सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है. तो अगर मान लीजिए हम वेट बढ़ाने के लिए लेंथ बढ़ा दिए, तो इन दोनों केसेस को सोचिए. इसकी सरफेस एरिया कम है, हमने लेंथ बढ़ा के सरफेस एरिया बढ़ा दी. हम बोले वेट हमने बढ़ा दिया. एक बात बताइए, आपने वेट तो चलिए ठीक है बढ़ा दिया है, लेकिन टोटल अपलिफ्ट फोर्स जो लग रहा होगा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पे वो भी बढ़ा दिया कि नहीं? क्योंकि यहां पर अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये ऐसा बनेगा. अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा? ऐसा. यहां पे भी गामा डब्ल्यू कैपिटल एच, गामा डब्ल्यू स्मॉल एच. यहां पे बनाऊंगा तो गामा डब्ल्यू कैपिटल एच और यहां पे तो गामा डब्ल्यू स्मॉल एच यही रहेगा. तो टोटल एरिया बढ़ गया, यानी कि टोटल वॉल्यूम प्रेशर प्रिज्म का बढ़ गया, अपलिफ्ट प्रेशर का वॉल्यूम बढ़ गया. और जब ऐसा हो गया तो टोटल अपलिफ्ट फोर्स बढ़ गया कि नहीं? तो याद रखिएगा, असर्शन रीजन में भी आ चुका है सवाल और स्टेटमेंट वाले में भी. जब कभी बोला जाए कि विच वन ऑफ दीज इज अ मेजर टू रिड्यूस अपलिफ्ट, सो इंक्रीजिंग लेंथ इज नॉट अ मेजर टू रिड्यूस अपलिफ्ट. Increasing length is a measure to reduce piping, because increasing the length will increase the flow path and piping will be reduced, but uplift will be increased. Uplift को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? Uplift को बढ़ाने के लिए आपको thickness को बढ़ाना पड़ेगा. Uplift को कम करने, uplift को कम करने के लिए आपको क्या करना होगा? Uplift को कम करने के लिए आपको weight को बढ़ाना होगा, और weight को बढ़ाने के लिए आपको thickness को बढ़ाना होगा.
तो इसी कारण पहला जो रेमेडियल मेजर है वो है you have to increase the thickness. That means if you had this much length, keep it the same length, but you increase the thickness of the floor. Okay, and when you increase the thickness from some t value to t dash, your weight will increase also, and therefore it will be able to counter more uplift force, because now it has more weight, and since it has more weight, it will be able to counter more uplift. Isn't it? हम जानते भी हैं, क्वेश्चन जो हमने किया बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें कि हम लोगों ने ऊपर के फोर्सेस और नीचे से जो अपलिफ्ट आ रहा था दोनों को बैलेंस कराया. अगर वेट ज़्यादा होगा, थिकनेस ज़्यादा होगा, तो अपलिफ्ट ज़्यादा रेजिस्ट हो पाएगा. सो दैट इज द केस हियर. ठीक है, यू कैन पुट दिस इन नोट. व्हाट यू कैन पुट दैट इन नोट? दैट इंक्रीजिंग लेंथ increases uplift force on the floor. Uplift force on the floor. इसको आप बाद में नोट में डालना, ठीक है, लास्ट में. ठीक है. दूसरा रेमेडियल मेजर क्या है? दूसरा रेमेडियल मेजर वही है, प्रोवाइडिंग शीट पाइल्स और कट ऑफ्स. प्रोवाइडिंग शीट पाइल्स और कट ऑफ्स. Providing sheet piles or cutoffs is the second remedial measure. That means there is a common remedial measure for piping or undermining and uplift. एक common remedial measure है पाइपिंग को रिड्यूस करने के लिए भी और अपलिफ्ट को भी, और वो common remedial measure क्या है? Provision of sheet piles. अब ऐसे में एक बात समझिएगा, अब आप खुद ही बताइएगा. मैं एक लाइन डायग्राम बना रहा हूँ. ये पहला केस अपस्ट्रीम पाइल और ये फ्लोर इज रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज एन अपस्ट्रीम पाइल. ठीक है, ये अपस्ट्रीम पाइल है, ये फ्लोर है. दिस इज अ फ्लोर एंड एन इंटरमीडिएट पाइल. दिस इज द फ्लोर एंड अ डाउनस्ट्रीम पाइल. थिंक लॉजिकली एंड टेल मी विच ऑफ दीज पाइल्स इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग अपलिफ्ट. इनमें से कौन सी पाइल अपलिफ्ट को रिड्यूस करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित होगी? पहली वाली. क्यों? क्योंकि पहली वाली में अपस्ट्रीम पाइल जब हम लगाते हैं तो पानी जब फ्लोर के नीचे एंटर करने से पहले ही हमने बहुत सारी एनर्जी लूज करवा दी. पानी फ्लोर के नीचे एंटर करे तो पानी के फ्लोर के नीचे एंटर करने से पहले ही हमने बहुत सारी एनर्जी लूज करवा दी. तो अपलिफ्ट फोर्स जो फ्लोर में लगेगा वो कम लगेगा क्योंकि पानी के पास एनर्जी कम हो गई है. सिमिलरली यहां पे भी वैसे ही देखो, उसी पैटर्न में अगर सोचोगे और ये रहेगा हमारे पास फ्लो, पानी के एक अप्रोक्सीमेट फ्लो का तरीका, तो इसमें क्या स्टार्टिंग से ही कम हुआ कि बाद में जाकर के कम हुआ? बाद में जाकर कम हुआ. तीसरा केस, यहां पे लास्ट में जाकर कम हुआ क्या? यहां पे लास्ट में जाकर कम हुआ, यहां पे स्टार्टिंग में ही कम हो गया. Which one is the best case? This one is the best case. This is the best case scenario to reduce uplift. This is the worst case scenario to reduce uplift. Not for piping. Don't get confused. पाइपिंग के लिए तो सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पाइपिंग कहां पे होती है? बात समझो बड़े ध्यान से. पाइपिंग होती है आखिर में जाकर, लास्ट में. पाइपिंग हैपेंस एट द एंड. So before that end point, if you add anything, whether it is an upstream pile or intermediate or a downstream, it will be effective obviously. But uplift starts happening from the starting point itself. Uplift starts happening from the starting point itself. From this point itself, uplift starts acting. So we need to make sure that as soon as the water comes below the floor, it should lose its energy then and there itself. And that is done best by which pile? That is done best by the upstream pile. ये वही बात हो गई ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. क्या पछताना हो रहा है? अपलिफ्ट प्रेशर लग जा रहा है, चिड़िया चुग गई खेत. क्या सी चिड़िया चुग गई खेत? मतलब वाटर सारा का सारा प्रेशर तो लगा दिया. मतलब जितना अपलिफ्ट लगना था उतना पानी ने तो लगा ही दिया. और स्टार्टिंग में हेड ज्यादा था तो स्टार्टिंग में तो ज्यादा लगता है अपलिफ्ट, एंड में अब वैसे ही कम लगता है, और एंड में आप और फर्दर रिड्यूस करके क्या कर लोगे? इससे बढ़िया होगा हम अपस्ट्रीम पाइल को बेटर वे में लगा दें, तो वो हमें अपलिफ्ट फोर्स को कम करने में ज्यादा हेल्प करेगी. सो अपस्ट्रीम पाइल्स आर मोर इफेक्टिव
in reducing uplift as compared to intermediate or downstream piles. You can see whatever I have told just now repeatedly. एक बार और repeat करिए और failure due to piping और failure due to uplift देखिए और cases को analyze करिए, समझिए, क्योंकि ये जरूरी है. जरूरी किसमें है? जरूरी है आपके statement वाले सवालों में, assertion reason के सवालों में. uplift के लिए criteria अलग है, पाइपिंग के लिए क्राइटेरिया अलग है. पाइपिंग की मैं बात करूं तो उसमें हर तरह की पाइल अच्छा काम कर जाएगी, क्योंकि पाइपिंग स्टार्टिंग से नहीं होती, पाइपिंग एंड में जाकर होती है. क्योंकि एंड में जाकर होती है तो आप अपस्ट्रीम लगाओ, इंटरमीडिएट लगाओ या डाउनस्ट्रीम लगाओ, ऑल विल बी इक्वली इफेक्टिव. हाउएवर अपलिफ्ट स्टार्ट्स एक्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ, and in those first points it is more in its intensity, as it is evident from these diagrams. You know कि जितना हेड इनिशियली होगा सबसे ज्यादा होगा, और उतना ही अपलिफ्ट भी इक्वल एंड अपोजिट. सॉइल से, जो सॉइल के अंदर पानी है वहां से रिएक्शन आएगा, जितना ऊपर से पानी का दबाव आएगा सॉइल के अंदर जो पानी है वो भी उतना ही रिएक्शन देगा. तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अपलिफ्ट को रिड्यूस करने के लिए दिस पाइल विल बी मोर इफेक्टिव बिकॉज इट विल रिड्यूस एनर्जी ऑफ वाटर in the initial stages itself. So I have told it for the 6th or the 7th time, I think. So I hope if you will understand it right now, it is good. But if there is any kind of confusion or maybe you want a repetition, definitely go for seeing it again. फिर से देखिए, ठीक है? All right. ये हो गया अपलिफ्ट के बारे में, इसको आप डाल देंगे नोट में. चलिए लिखिए सेकंड वाला, failure due to uplift. Write down the second one, failure due to uplift. Failure due to uplift. Write it down. The water percolating below the foundation, the water percolating below the foundation exerts an upward pressure on the floor, which is known as uplift pressure. Which is known as uplift pressure. If the uplift pressure is not reduced, or counterbalanced, if the uplift pressure is not reduced or counterbalanced, comma, the floor may fail. Floor हो सकता है fail. Full stop. Change the line and write. Following steps are taken to prevent the uplift failure. Following steps are taken to prevent the uplift failure. Following steps are taken to prevent the uplift failure. ठीक है, पहला और दूसरा. अब इसमें मैं पूरा लिख दे रहा हूं. Providing sheet piles or cutoffs in the upstream side. On the upstream side. On the upstream side. Upstream side. Okay, because this is the best one and these are not the good ones. Okay, if you want to reduce uplift, the best one is the upstream pile. So पहला लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए, ठीक है. नोट में इसको डाल देंगे, पूरा दिख रहा है ना आखिरी तक? ठीक. ओके, तो ये हो गई वो बातें जो कॉमनली हर थ्योरी कह रही है. ठीक है. अब कुछ थोड़ा बहुत डेविएशन हर थ्योरी में थोड़ा बहुत हो जाता है, और
कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। सो लेट अस नाउ कम टू द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज ब्लाइस क्रीप थ्योरी। द फर्स्ट थ्योरी दैट इज ब्लाइस क्रीप थ्योरी। ब्लाइस क्रीप थ्योरी क्या है? एक अप्रोक्सीमेट तरीका है। इट इज एन अप्रोक्सीमेट वे। ब्लाइस क्रीप थ्योरी इज एन अप्रोक्सीमेट वे ऑफ फाइंडिंग आउट द सीपेज हेड्स बिलो द फ्लोर। फाइंडिंग आउट द सीपेज हेड्स बिलो द फ्लोर। फ्लोर के नीचे सीपेज हेड निकालने का अप्रोक्सीमेट तरीका है, एग्जैक्ट तरीका नहीं है। क्यों यूज करते हैं लोग इसे? बिल्कुल इसीलिए, इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं जैसे कि एलिमेंट्री प्रोफाइल यूज होता है। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम का यूज क्या है? एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम का यूज है टू अप्रोक्सीमेटली एनालाइज द ग्रेविटी डैम बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फुल्ली एनालाइज एंड देन चेंज वन एस्पेक्ट एंड देन एनालाइज इट अगेन। तो वैसे ही समझ लो ये भी कुछ इसी तरीके का, पहले अप्रोक्सीमेटली देख लो, चेक कर लो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, फिर खोसलास थ्योरी से डिटेल्ड एनालिसिस कर लेना है, डिटेल्ड डिजाइन कर लेना, ऐसा है। तो चलिए ब्लाइस क्रीप थ्योरी देखते हैं। ब्लाइस क्रीप थ्योरी में मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं और साथ ही साथ मैं अजम्पशंस भी बताता जाऊंगा। फिर लिखेंगे पहले अजम्पशंस। कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे अजम्पशन, फिर लिखेंगे बोर्ड में लिखा हुआ पूरा एनालिसिस, और फिर लिखेंगे लिमिटेशंस यानी तो ड्रॉबैक्स। लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स, तो 3 पार्ट में। तो मैं एनालिसिस करते करते मैं इसके अजम्पशंस आपको बताते चला जाऊंगा और ड्रॉबैक्स भी बताते जाऊंगा। फिर लिखते समय सबसे पहले लिखेंगे एजम्पशन जो मैं डिक्टेट करूंगा, एनालिसिस जो बोर्ड में लिखा रहेगा, और फिर उसके बाद लिमिटेशंस जो मैं डिक्टेट करूंगा। ठीक है, चलिए एनालिसिस में देखिए, ब्लाई ने पहला एजम्पशन फ्लोर की थिकनेस जो है ना उसको कंसिडर नहीं किया ड्यूरिंग द एनालिसिस। फ्लोर की प्रैक्टिकली थिकनेस होगी, फाउंडेशन है भाई, थिकनेस कैसे नहीं होगी? थिकनेस होगी, लेकिन ड्यूरिंग इट्स एनालिसिस ही डिड नॉट कंसिडर द थिकनेस ऑफ द फ्लोर। Although I'm drawing it like this to show the differentiation between normal ground here and this floor here, but Bly did not consider the thickness of the floor during computation. ठीक? इसके बाद जैसे अब मैं लाइन डायग्राम से दिखा रहा हूँ, ये हमारी है अपस्ट्रीम पाइल, ठीक, ये है एक डाउनस्ट्रीम पाइल, ठीक, ये है कोई इंटरमीडिएट पाइल, और ये भी है कोई इंटरमीडिएट पाइल। मैंने जानबूझकर क्या किया, एक इंटरमीडिएट पाइल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से गहरी, द इंटरमीडिएट पाइल दिस वन इज गोइंग डीपर देन बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, एंड दिस इंटरमीडिएट पाइल इज गोइंग शैलोअर देन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। इतनी ज्यादा गहरी नहीं जा रही। मैं एक्चुअली यहाँ पे कंपेयर करवाना चाहता हूँ खोसलास थ्योरी से। खोसला थ्योरी का रिकमेंडेशन है कि अगर इंटरमीडिएट पाइल आप बनाएंगे तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों से गहरी होनी चाहिए, दोनों से गहरी। ब्लाई की ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, तो ताकि आपको ये याद रहे कि ऐसी कोई रिकमेंडेशन ब्लाई ने नहीं दी, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी और एक छोटी दोनों पाइल इंटरमीडिएट में लगा के दिखा रहा हूँ। सो इट डज नॉट मैटर। लेकिन अगर खोसला में मैं डायग्राम बनाऊंगा गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि खोसला कहता है कि अगर आप इंटरमीडिएट डाल रहे हो तो आपको गहरी भी बनानी पड़ेगी। क्यों, समझ जाएंगे खोसलास थ्योरी में। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, इसको भी ऐसे ही लाइन डायग्राम से दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, इसके अपस्ट्रीम एंड पे हेड है मान लो H1 और डाउनस्ट्रीम एंड पे हेड है H2, ठीक है। व्हाट इज द हेड कॉजिंग सीपेज? This is the head causing seepage, H. This is the head causing seepage, ठीक है, ऐसा है। अब दूसरा assumption ब्लाई का क्या है? दूसरा assumption है कि जो पानी का मूवमेंट होता है, the movement of water takes place along the base profile of the floor. The movement of water takes place along the base profile of the floor. मतलब पानी का मूवमेंट ऐसे होगा, जैसा बेस प्रोफाइल है बिल्कुल वैसे ही होगा। फिर देखेगा पानी कि अरे यहाँ पे मुड़ना है तो चलो रास्ता यहाँ है, मुड़ जाता है। ये ब्लाई ने कहा कि ऐसा मूवमेंट होता है। इजंट इट काइंड ऑफ स्ट्रेंज? क्या पानी ऐसे मूव करते हुए जाएगा?
ये रास्ता फॉलो करते हुए, या वो एक लीस्ट पाथ को फॉलो करके जाएगा? जो लीस्ट पाथ होगा उसको फॉलो करेगा ना, ऐसे घूम घूम के पूरा एंड तक जाएगा और टच करेगा एंड के पॉइंट को और उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली एनालाइज करने का तरीका है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? देयर इज दिस अजम्पशन दैट वाटर फ्लोज अलोंग द बेस प्रोफाइल। सो इफ एट ऑल this length is D1, this sheet pile, this length is D2, the sheet pile, this is D3, this sheet pile, and this is D4, this sheet pile. Moreover, the length in between these two piles is B1, between these two piles is B2, between these two piles is B3. ऐसा है। तो ब्लाई ने एक टर्म डिफाइन की और उसको बोला क्रीप लेंथ। क्या बोला? उसको बोला ब्लाइज क्रीप लेंथ। अब क्रीप का मतलब इस थ्योरी में क्या है? इस थ्योरी में क्रीप का मतलब होता है फ्लो। अगर बोला जाए ब्लाइज क्रीप लेंथ तो समझिएगा ब्लाइज फ्लो लेंथ। ब्लाइज क्रीप लेंथ मतलब ब्लाइज फ्लो लेंथ। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं LC से। LC इज द लेंथ ऑफ क्रीप। व्हाट इज लेंथ ऑफ क्रीप? Length of creep is summation of all the horizontal lengths of flow and summation of all the vertical lengths of flow. This is the creep length. Summation of all the horizontal lengths of flow and all the vertical lengths of flow. तो ये sigma h क्या? Sigma h is sum of horizontal length of flow, sum of horizontal length of flow. Sigma v is sum of vertical length of flow. Sum of vertical length of flow. All right. Now seeing this, this is the length of creep. जैसे मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को देखते हुए क्या लग रहा है कि इस केस में, in this case, how will you write down LC? In this case, how will you write down LC? LC will be written as 2D1 होगा plus B1 होगा plus 2D2 plus B2 plus 2D3 plus B3 plus 2D4 क्या? plus 2D4 ऐसा होगा क्रीप लेंथ। इस केस के लिए बात कर रहे हैं, इस केस में ऐसा होगा। अब एक और चीज यहां पे हम डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। एक और चीज डिफाइन करेंगे जिसको कहते हैं hydraulic gradient. What is hydraulic gradient? In general, hydraulic gradient is in general the head lost per unit length of flow. Hydraulic gradient होता है कि head कितना lose कर रहा है per unit length of flow. Rate of head loss you can say, rate of head loss. So hydraulic gradient HL upon L से represent होता है, head lost per unit length of flow. तो इसको जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम यहाँ पे लिखेंगे HL अपॉन L को कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द हेड विच इज लॉस्ट? थिंक अबाउट इट। यहाँ पे जो पानी एंटर किया है उसके पास कितना हेड है? H1 हेड है ना। जो प्रेशर दबाव लग रहा है इस पानी के मॉलिक्यूल पे वो पूरे H1 हेड का लग रहा है जो जस्ट एंटर किया है। उस मार्जिनल पॉइंट के पार्टिकल के बारे में सोचिए, उसमें हेड कितना लग रहा है? H1 हेड एक्सपीरियंस कर रहा है। जो बाहर निकला है पार्टिकल यहाँ से, उसके ऊपर भी तो हेड है। कितना हेड है उसके ऊपर? H2 है। तो यहाँ पे था H1, यहाँ पे है H2, तो कितना हेड लूज किया? H1 माइनस H2। तो हाउ मच इज द हेड लॉस्ट? हेड लॉस्ट इज नथिंग बट H1 माइनस H2। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फ्लो? एज पर द assumption द लेंथ ऑफ द फ्लो इज LC। ये पूरा जो मैंने ब्लू ब्लू दिखाया है, तो लेंथ ऑफ द फ्लो इज LC, और यू कैन सिंपली से H अपॉन LC। दैट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन दिस केस। Now Bly has assumed this hydraulic gradient to be constant. कहने का मतलब यह है, Bly ने कहा कि हर यूनिट लेंथ में उतना ही हेड लॉस होगा। ये भी एक assumption है, हर यूनिट लेंथ में हेड लॉस उतना ही होगा। खोसला ने बाद में आकर के इसको नकार दिया था। खोसला ने कहा ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है, पाइल का म्यूचुअल इंटरफेरेंस भी हो सकता है, स्लोप ऑफ द फ्लोर, थिकनेस ऑफ द फ्लोर, यहाँ पे कुछ भी कंसिडर नहीं किया गया। तो ऑब्वियस ही बात है, अप्रॉक्सीमेट थ्योरी है। ये ऐसा तो बोल नहीं रहा है कि मेरे थ्योरी को लेकर के आप डिटेल्ड एनालिसिस करो, है ना। अब अगर मान लो कि बाबा रामदेव, अगर मान लो कोरोनिल लेकर के आता और बाबा रामदेव ऐसे बोलते
कि ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। अगर बाबा रामदेव बोलते कि प्रिवेंटिव मेजर है तो सब लोग शायद उसको भली भांति स्वीकार कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते और बोलते कि अच्छा है, चलो अगर इसको खाने से गिलोय, अश्वगंधा और ये सब खाने से, स्वसरी रस, ठीक है, ये सब खाने से मान लो, कंज्यूम करने से मान लो शायद कोरोना से हम प्रिवेंट हो सकते हैं, तो अच्छी बात है, हम कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन बाबा रामदेव ने इसको मार्केटिंग कैसे कर दी? स्टार्टिंग में ही गड़बड़। क्या कर दी इन्होंने? बोल दिया 50-100 लोगों का टेस्ट करके इन्होंने बोल दिया कि 7 दिन में ही 100% मरीज ठीक हो जाता है। अब ये क्लेम की वजह से गड़बड़ आ गया मामला कि भाई पहले पूरा बड़े सैंपल साइज पे लेकर के आओ, उसके बाद टेस्टिंग करो, है ना, टेस्टिंग करने के बाद फिर आप अपने रिजल्ट दे दो। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आ गई, है ना, प्रोडक्ट प्लेसमेंट सही नहीं हो पाया। तो anyways, so you can learn the business strategy from here also, that place your product properly first of all, है ना, so that people will tend to buy it. Otherwise, if you place it like in the wrong way, so people may not buy it, and maybe the governments might simply refuse to, show it in the medical stores, right? तो वही हुआ है। ब्लाई भी ऐसा ही है। ब्लाई ने खुद बोला भाई इतने assumption हैं, ऐसा तो नहीं बोल रहा है, ये मिसगाइड तो नहीं कर रहा है, ये तो नहीं बोल रहा है कि यार ऐसा है कि इसको इससे डिजाइन कर लोगे तो स्ट्रक्चर सेफ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है, ये खुद भी बोलता है कि ये अजम्पशंस रहे, ये मेरा एनालिसिस का तरीका रहा और ये रहे मेरे ड्रॉबैक्स। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करनी है तो ऐसा कर लो। अगर बाबा रामदेव ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बहुत अच्छी बात है, हमें आयुर्वेदा को प्रमोट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, है ना। और अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो कोरोना से आप बच सकते हो, बच सकते हो। तो ऐसे सकते वर्ड का यूज करना चाहिए था ना। उन्होंने बोला बच जाओगे, दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। विदाउट प्रूविंग वी कैन नॉट से दैट, राइट। प्रूव करने के बाद बोलते तो सब लोग शायद होल हार्टेडली एक बार में एक्सेप्ट कर लेते। अब उनको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव हो गया तो अच्छी बात है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अब तो अभी तो आगे बहुत कुछ होना है, ठीक है। चलो एनीवेज देखो, अब ऐसा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसको इन्होंने कहा कि ये कांस्टेंट मान के चलो। खोसला ने बाद में आके बताया कि ऐसा नहीं होता है, तो ये भी बोलते थे ऐसा नहीं होता है, ये अजम्पशन है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब अगर हमको ये जानना है कि व्हाट इज द सीपेज हेड, व्हाट इज द सीपेज हेड एट एनी पॉइंट x, कोई भी एक रैंडम सा पॉइंट ले रहा हूं मैं x और सीपेज हेड को कह रहा हूं px, ठीक है। तो चलो कोई सा एक पॉइंट लेते हैं यहां पर। लेट अस सपोज सम रैंडम पॉइंट, आई एम मार्किंग इट हियर एंड दैट रैंडम पॉइंट इज x। मान लीजिए दैट रैंडम पॉइंट इज x, ठीक है। तो अब समझो, सीपेज हेड एट एनी पॉइंट x विल बी व्हाट? हेड अवेलेबल माइनस हेड लॉस्ट अप टू x। सही बात है कि नहीं? हेड कितना अवेलेबल था जिसके थ्रू फ्लो चल रहा है, और यहां तक लूज कितना हुआ। सपोज आपके पास 500 रुपए हैं और आपने लूज कर लिए 50 रुपए, तो बच गए 450 रुपए। इफ यू हैव 500 rupees, you have lost 50, you are remaining with 450. That's what we need. What is the seepage head here? So this is the rate of head loss per unit length. So we already know the lost rate, and therefore head available was h. First of all, head lost up to x is how much? With which rate it is losing? H upon LC is the rate, and how much is lost? Up to LX it is lost. So I have this is the multiply sign. Okay, I'll just remove the multiply sign better so that you don't get confused, right? So h minus h upon LC is the rate, and up to x the length traversed will be Lx. The length traversed will be Lx. How do you calculate Lx? You can calculate 2d1 plus b1 plus 2d2 plus, if there is some distance given to you, let us suppose small x, so plus x हो जाएगा। जहां से भी डिस्टेंस दिया हो वो क्वेश्चन में देख लेना, जैसे भी दिया हो, लेंथ अप टू x हम बता सकते हैं, ठीक है। लेंथ, क्रीप लेंथ अप टू x, तो px सीपेज हेड एट एनी पॉइंट हो जाएगा h इंटू 1 माइनस Lx अपॉन LC। नाउ दिस बिकम्स आवर जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ब्लाइस थ्योरी। ये हमारी जनरल एक्सप्रेशन बन गई ब्लाइस थ्योरी की। व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट द सीपेज हेड एट एनी पॉइंट x, first find out h, then LC, length of creep, then length up to point x. You'll get the seepage head at point x. Okay. Now with the help of this, let us talk about case 1.
पाइपिंग और अंडरमाइनिंग, अगर पाइपिंग और अंडरमाइनिंग को प्रिवेंट करना है, पाइपिंग और अंडरमाइनिंग प्रिवेंशन, अगर केस 1 हमें पाइपिंग या अंडरमाइनिंग को प्रिवेंट करना है, तो ऐसे में ब्लाई कहते हैं कि लेंथ ऑफ द क्रीप शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू C इंटू H। ये ब्लाई ने एक्सप्रेशन दिया, क्या दिया कि आपकी क्रीप लेंथ अगर CH या उससे ज्यादा है तो प्रिवेंट हो जाएगा पाइपिंग या फिर अंडरमाइनिंग फेलियर, ये प्रिवेंट हो जाएगा। C क्या है? C को हम लोग कहते हैं ब्लाइज क्रीप कोएफिशिएंट, ब्लाइज क्रीप कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? ब्लाइज क्रीप कोएफिशिएंट। किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, it depends on the type of soil. So what Bly did is that since this is an assumed theory, बहुत सारे assumptions इसमें, तो उन्होंने टेस्ट कर करके देखा मेरी थ्योरी में अगर मैं पाइपिंग या अंडरमाइनिंग को प्रिवेंट करना चाहता हूं तो हर तरह के सॉइल में C की वैल्यू क्या लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जैसे सैंड के लिए उन्होंने कहा कि C की वैल्यू 4 to 6 के बीच में रखो। सैंड के लिए अगर C की वैल्यू 4 to 6 के बीच में है तो मान लो मैं C की वैल्यू 5 ले रहा हूँ और H की वैल्यू मान लो 10 मीटर है, तो लेंथ ऑफ द क्रीप किससे ज्यादा होना चाहिए? 50 मीटर या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। लेंथ ऑफ द क्रीप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मीटर। दैट मीन्स यू हैव टू डिजाइन योर फाउंडेशन इन सच अ वे दैट दीज लेंथ एंड द पाइल्स एंड एवरीथिंग शुड गेट यू अ लेंथ ऑफ क्रीप of more than or just equal to 50 meter, and if you do that then your foundation is going to be safe against piping. Safe against whom? Safe against piping. So this is the methodology proposed by him, and this was found experimentally. This was not obtained theoretically. Since everything was theoretical, so he needed something experimental. So this was found experimentally to make sure that the foundation, if at all designed from this particular theory, it should not fail. Got the point? चलिए इसके बाद आते हैं हम हमारे केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 पे अपलिफ्ट प्रिवेंशन की बात की गई। अपलिफ्ट प्रिवेंशन की बात की गई तो ब्लाई ने यहाँ पे प्रपोज किया वेट के क्राइटेरिया को, मतलब थिकनेस बढ़ाने के क्राइटेरिया को। तो ब्लाई ने कहा कि जो भी थिकनेस लगाएंगे एट एनी पॉइंट, थिकनेस टू बी प्रोवाइडेड एट x tx should be greater than or equal to px upon gc minus 1। ये ब्लाई ने प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया कि थिकनेस टू बी प्रोवाइडेड एट x पॉइंट पे अगर थिकनेस प्रोवाइड करनी है तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू px अपॉन gc माइनस 1। gc आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट, ये जनरली कॉन्क्रीट का बनता है, इसी कारण हमने यहाँ पे ऐसा लिख लिया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, आखिरी तक दिख रहा है? ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट gc। तो वहां पे आप क्या करिए, अगर आपको किसी x पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्लोर and in this floor there is this point x, you want to know how much should be the thickness of the floor at this point x. So you can calculate from this particular formula that what should be the thickness at this point x. Similarly, if we want to find out the minimum thickness, so what will be the minimum thickness to be provided at x? That will be tx minimum given as simply px upon gc minus 1. You don't have to take greater than equal to sign. You don't have to take greater than equal to sign. Just equal to would be enough. That will give you a minimum thickness. Similarly, there is one more provision of design thickness. जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से आप आंसर करेंगे। डिजाइन थिकनेस एट x। डिजाइन थिकनेस एट x निकालने के लिए ब्राई ने कहा कि एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप ले लेंगे 4/3। You don't have to assume any factor of safety by yourself. You have to take what this researcher has told you, because हम उसके नाम से थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसने जो रिकमेंड किया है कुछ सोच समझ के रिसर्च करके रिकमेंड किया होगा टेस्टिंग करने के बाद। तो हमें कुछ नहीं, मिनिमम वैल्यू को 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं डिजाइन थिकनेस, कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं मिनिमम थिकनेस। तो ध्यान देंगे आप कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मिनिमम थिकनेस की डिजाइन थिकनेस। डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल आंसर। तो for uplift prevention he has given this thing, and for piping prevention he has provided
दिस थिंग। पाइपिंग के लिए ये बताया है, अपलिफ्ट के लिए वो बताया है, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे ब्लाइस थ्योरी में एक और चीज यहाँ पे देख रहे हो, अपलिफ्ट में क्या प्रॉब्लम है। अपलिफ्ट में एक प्रॉब्लम ये है कि हर पॉइंट पे जो px होगा, x वैल्यू बदलेगी, x लोकेशन चेंज करेगा, तो हर पॉइंट पे px डिफरेंट होगा कि नहीं? हर पॉइंट पे px डिफरेंट हो जाएगा। हर पॉइंट पे px डिफरेंट मतलब हर पॉइंट पे थिकनेस डिफरेंट। So is it practically possible to change thickness at every point because P will be different at every point? It is not possible. This is one of the drawback. This is one of the drawback of Bly's theory, that Bly's saying that thickness at every point is changing because P value is changing, but practically it is not possible to provide different values of thickness at every point. That is also a drawback. Okay. Okay, so let's start writing Bly's creep theory. Bly's creep theory में सबसे पहले आप लिखेंगे assumptions. First thing, assumptions. Write down the assumptions. आप स्टार्टिंग का दिखा दो, फर्स्ट से, स्टार्टिंग से। assumptions में फर्स्ट लिखिएगा, the water percolating through the subsurface, the water percolating through the subsurface, the water percolating through the subsurface creeps along the water percolating through the subsurface creeps along the base profile of the floor. The water percolating through the subsurface creeps along the base profile of the floor. Base profile of the floor. Second, the head lost per unit length of creep, the head lost per unit length of creep, the head lost per unit length of creep is constant throughout the length of creep. The head lost per unit length of creep is constant throughout the length of creep. Is constant throughout the length of creep. The head lost per unit length of creep is constant throughout the length of creep. है ना, वही बात की हमने जिसकी। थर्ड, there is no difference between horizontal and vertical creep. There is no difference between horizontal and vertical creep. Horizontal और vertical creep में कोई difference नहीं लिया गया. There is no difference between horizontal and vertical creep. ठीक, मतलब पानी हॉरिजॉन्टली मूव करे या फिर वर्टिकली मूव करे, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं लिया गया, ठीक है। ऑल राइट, नाउ गिव द हेडिंग एनालिसिस। गिव द हेडिंग एनालिसिस एंड रिगार्डिंग एनालिसिस एवरीथिंग इज रिटन इन द बोर्ड। यहां से दिखाइए, स्टार्टिंग से यहां तक दिख रहा होगा, 2 पार्ट आ गया, ठीक। अब यहां पे ले आओ केस 1। केस 1 में है कहां, वहां पे, यहां से पूरा आखिरी तक। इसके पहले का दिखा दीजिए, कब, अभी दिखाओ फिर से, मेरे बोलने के बाद, अपने से नहीं करो। यहां पे हो गया, ठीक है। अब वो दूसरा पार्ट दिखा दो, केस 1 केस 2। ठीक है। इसके बाद yes, so after this write down the limitations। इसके बाद write down the limitations। इसके बाद लिखिए limitations। limitations में पहला, hydraulic gradient is assumed to be constant, which is not true।
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब हर यूनिट लेंथ में उतना ही हेड लॉस हो, जरूरी नहीं है. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट विच इज नॉट ट्रू. ये ट्रू नहीं है. Hydraulic gradient is assumed to be constant, which is not true. Second, Bly observed no difference between horizontal and vertical creep. Bly ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप में डिफरेंशिएशन नहीं किया दोस्तों. ब्लाई ऑब्जर्व्ड नो डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप. मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा तो भी उसी रेट से हेड लॉस होगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा तो भी उसी रेट से हेड लॉस होगा. नेक्स्ट Bly observed no difference between short and long intermediate piles. Bly observed no difference between short and long intermediate piles. ब्लाई की थ्योरी में फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी इंटरमीडिएट पाइल छोटी है या बड़ी है, इस पे उसने कुछ भी कमेंट नहीं किया. लेकिन खोसला ने प्रूफ कर दिया था कि इंटरमीडिएट पाइल हमेशा गहरी जानी चाहिए एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पाइल्स. ये उन्होंने अपनी थ्योरी में प्रूफ कर दिया था खोसला ने. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू Bly, the thickness of the floor required at every point is different. According to Bly, the thickness of the floor required at every point is different. As per Bly, the thickness of the floor required at every point is different. The thickness of the floor required at every point is different, which is practically not possible to provide. ये practically possible नहीं है provide करना, एक इसकी limitation बन गई, which is practically not possible to provide. Next and the last one. Bly observed no difference between the effectiveness of outer and inner faces of the sheet piles. Bly observed no difference between the effectiveness of outer and inner faces of the sheet piles. Bly observed no difference between the effectiveness of outer and inner faces of the sheet piles. ये last point हम खोसला's theory में समझेंगे, my dear friends. We are going to understand this last point in the Khosla's theory, but for now you have understood the 4 points, right? Now coming to the next theory, which is almost similar to this Bly's creep theory, which is our Lane's weighted creep theory. Next is the Lane's weighted creep theory. Lane's weighted creep theory, ये हमारी अगली थ्योरी है. देखिए फर्क क्या है, ब्लाई और लेन में सिर्फ एकमात्र फर्क है. और कौन सी लिमिटेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, सेकंड लिमिटेशन. जरा देखिए, आपने लिखी होगी अभी सेकंड लिमिटेशन आपने लिखी होगी, ब्लाई ऑब्जर्व नो डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप. लेकिन लेन वाज अ रिसर्चर, 5 years लेटर ही प्रपोज्ड अ थ्योरी इन विच ही प्रपोज्ड कि
हॉरिजॉन्टल लेंथ का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना वर्टिकल लेंथ का होता है। इसको आप ऐसे सिंपल वे में समझ सकते हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। आप अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ऊपर नीचे मूवमेंट करेंगे तो आपकी एनर्जी लॉस ज्यादा होगी। अगर एक ही फ्लोर में आप ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे तो आपकी रिलेटिवली एनर्जी लॉस कम होगी। तो लेन ने कहा कि हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द फ्लो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है इन रिड्यूसिंग आवर हेड्स इन द एनर्जी, and vertical length is more effective in reducing our energy, and therefore he gave more importance to vertical as compared to horizontal। और यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया गया weighted। weighted मतलब horizontal का weight कम कर दिया, vertical का weight बढ़ा दिया। importance vertical को ज़्यादा importance दिया गया, horizontal को कम importance दिया गया। एनालिसिस बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम आपको लिखना होगा। फिर से एक ही चीज चेंज होगी बस, और वो चीज होगी कि लेन ऑब्जर्व्ड अ डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप बट ब्लाई डिड नॉट। एंड हाउ डिड ही ऑब्जर्व? ही गेव दिस थिंग, क्या? ये लेन्स वेटेड क्रीप लेंथ। हम लिखे थे ब्लाइज क्रीप लेंथ, यहां पे लिखेंगे लेन्स वेटेड क्रीप लेंथ। लेन्स वेटेड क्रीप लेंथ क्या है? लेन्स वेटेड क्रीप लेंथ है सिग्मा h बाय 3 प्लस सिग्मा v। ये है मतलब जहां जहां भी आप हॉरिजॉन्टल लेंथ लेंगे फ्लो का, वहां वहां आप उसको डिवाइड बाय 3 करते जाएंगे। जहां जहां आप हॉरिजॉन्टल लेंथ लेंगे फ्लो का, आप वहां पे उसको डिवाइड बाय 3 करते चले जाएंगे। दोस्तों समझ गए बात? जैसे कि इस केस की मैं बात करूं तो अब यहाँ पे LC नहीं, यहाँ पे LWC से रिप्रेजेंट होता है। वेटेड क्रीप लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय LWC। बहुत सिंपल है, बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे अब हम LWC लिख देंगे, ये हो जाएगा 2D1 प्लस, आप खुद ही बता सकते हैं, B1 बाय 3 प्लस 2D2 प्लस B2 बाय 3 प्लस 2D3 प्लस B3 बाय 3 प्लस 2D4। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी बस यही LWC हो जाएगा और ये LWC हो जाएगा। सीपेज हेड एट एनी पॉइंट Px से ही लिखते हैं, और यहाँ पे सिंपली LWX हो जाएगा और ये LWC हो जाएगा, और ये जो फॉर्मूला होगा इसमें हो जाएगा LWX बाय LWC, LWX बाय LWC। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे भी आयरॉनिकली ही प्रपोज द सेम थिंग हियर, ही प्रपोज द सेम थिंग हियर, बट LC की जगह क्या हो गया? LWC should be greater than equal to CWH। What is CW? CW is लेन्स वेटेड क्रीप कोएफिशिएंट। क्या है? हर जगह वेटेड लगा के चले गए। लेन्स वेटेड क्रीप कोएफिशिएंट। कल को आपको लगे कि नहीं भाई 3 नहीं 3.5 होना चाहिए था, आप अपनी थ्योरी प्रपोज कर देना, लेकिन ऑब्वियसली it should be backed by some proof also, and definitely he gave the proof behind it also, and that's why we are studying it. It was published। कोई भी थ्योरी पब्लिश तभी होती है जब गिवन assumptions के साथ साथ जो limitations हैं उनको भी अकाउंट फॉर किया जाए, और उसके बाद वो थ्योरी को साइट में अप्लाई किया जा सके अंडर दोज assumptions, तभी वो थ्योरी पब्लिश की जाती है। तो इन्होंने पब्लिश की बिकॉज ही गेव सम प्रूफ बिहाइंड इट। ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल एंड इट इज ऑल्सो फाउंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है। एग्जाम्पल, ये वही चीज को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी अपलिफ्ट के प्रिवेंशन के लिए, लास्ट में आ जाइए, अपलिफ्ट के प्रिवेंशन के लिए भी यही चीज बताई गई। क्या चीज? कि Tx should be greater than equal to Px upon Gc minus 1, minimum is this, design is this। इनफैक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी उन्होंने चेंज नहीं किया, 4/3 को 4/3 ही रखे रहने दिया। सो बेसिकली फर्क ब्लाई और लेन में सिर्फ इतना है, सिंपल सी बात, ब्लाई डिड नॉट ऑब्जर्व एनी डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप और वर्टिकल फ्लो, एंड लेन डिड। He gave more importance to vertical creep or vertical flow, creep माने flow, and less importance to the horizontal। That's it, बस इतना ही है। तो आप बस एक स्टेटमेंट लिखिए और एनालिसिस ये पूरा का पूरा लिख दीजिए। एक स्टेटमेंट लिखिएगा, लिखेंगे the only difference between Bly's creep theory, the only difference between Bly's creep theory and Lane's weighted creep theory is that
The only difference between Bly's creep theory and Lane's weighted creep theory is that Lane observed a difference between horizontal and vertical creep. Lane observed a difference between horizontal and vertical creep as follows. Give the heading analysis. यहाँ पे ले आइए. आ गया. ठीक है. अब ये एनालिसिस में बिल्कुल वैसा ही लिखना है आपको जैसे आपने ब्लाई में लिखा. लिख लीजिए, ऐसा नहीं छोड़ना नहीं है. ये पूरा लिख लो. यहाँ से यहाँ तक आ गया होगा. अब वो केस 1 केस 2 आ जाएगा. आ रहा है पूरा? चलो ठीक है. So this is all there in this particular session. From the next session, we are going to start with our Khosla's theory of seepage. Okay, thank you so much.